Good evening, everyone. Today we are meeting in our weekly program, and I hope that everyone is fine in these uncertain times. In this edition of our program, we will be discussing a very relevant book which has got issues and already in second print on 15th of March. Name of the book is Republic of Hindutva: How the Sangh is Reshaping Indian Democracy. This book is written by Professor Badri Narayan ji. And today we are honored to have Sri Ram Madhav ji, who is both a scholar and practitioner of Rashtriya Swayamsevak Sangh and its affiliate organization. He has devoted his life to the service of nation, and he became an RSS pracharak. And he is working with RSS since last 35 years. He has done his MA Master of Arts in Political Science. He has authored and edited many books in Telugu and English. He regularly writes for national daily newspapers and magazines. And he is also uniquely placed for this program, especially because he has served both in RSS and BJP, Bharatiya Janata Party. He was loaned to Bharatiya Janata Party in 2014, where he worked as National General Secretary for 6 years. And currently he is National Executive Member of RSS. And he has also recently published a book named Because India Comes First. So we are very honored to welcome Sri Ram Madhav ji for this discussion, and like always, he kindly agreed to speak in this program to share his views. So welcome Ram Madhav ji. हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. And when we were discussing about this book with Professor Badri Narayan sir, and we planned this program long back, but because of pandemic and all, we were not able to organize this book discussion. So this was long overdue. So Professor Badri Narayan sir is himself with us. He हमारे साथ में हैं, and he has done extensive work on the marginalized section of Uttar Pradesh. His research on invisible Dalits or Dalits among Dalits brought him great appraisal from different quarters. This book, Republic of Hindutva, is also a result of his field research of last 20 years. So he's working on this idea since last 20 years, and he will also share his experience. And then he reached on these conclusions, which he will share with us in this discussion. And this program will be chaired by Professor T.V. Kattimani, who is currently Vice Chancellor of Central Tribal University of Andhra Pradesh, Konda Karkam. Today, the vote of thanks would be given by Dr. Vandana Mishra, who is currently teaching in Jawaharlal Nehru University and our core team member at Academics for Nation. So, with the permission of chair, I would like to request Professor Badri Narayan ji to brief us about his book Republic of Hindutva, which would be followed by the views of Sri Ram Madhav ji. Ram Madhav ji has not just practiced RSS but have also written a lot about RSS and its activities. And one such article was recently published in Open Magazines, which deals with RSS and modernity. So I would like to request Professor Badri Narayan to share his findings of the book. Professor Badri Narayan sir. Thank you, Swadesh, and thank you, Academy for Nation, for organizing a book discussion on my book, Republic of Hindutva. I am very thankful to Ram Madhav ji for agreeing to speak on this book, and also Professor T.V. Kattimani ji, who is a very respectable scholar of tribal studies and social knowledge of the marginal community, is with us. So actually, it's very difficult for author to speak on the book because, as you know, when text published, when the death of author begins, the birth of readers, death of author begins, and the birth of reader also begins from the same time. So it goes in the hand of the readers, and readers read it in their own ways. But I'm going to tell a few things which will help us in discussing this book. My process of writing and also the issues which I have tried to reflect in this book, and the kind of responses emerged due to the discourses created by this book.
Actually, I started researching on, I researched on Dalit and marginal community in India, and especially Uttar Pradesh and Bihar since long time. When I was doing field work around 2000 in Uttar Pradesh, I tried to see the impact, the activities of RSS among various marginal communities. And for me, it's a new experience because uh, we have the various kinds of stereotypes for which we know the RSS. In that, it's a traditional organization, it's a family organization, it's communal organization, not like that. These kind of stereotypes mostly are being discussed in academics, in the public about the RSS. But when I saw the various kinds of activities, the way they were trying to link and associate themselves with the marginal community was really amazing. And that helped me to understand that what we are seeing, what we are listening, and what we are seeing are two different things. Because we listen, we have perception and reality are two different things. But it took a long time to change my. So I documented the entire process since 20 years, how they are working among the Dalit communities, how they are entering and deepening their socio-cultural sphere, how they are helping to reshape democracy in their everyday life through various ways. And these all ways to the way they are working help me to understand that there is a need to understand RSS in a new way. And that's why I tried to write this book. It's called Republic of Hindutva. And this book is not about RSS. This book about the making of Hindutva consciousness in India and how it is being disseminated to the grassroots of the margins. And that documentation I tried to do this. But RSS comes as important, a very important agency in dissemination of Hindutva consciousness to the grassroots of the marginal community in India. So RSS appear importantly in this discourse. So this book is about the Hindutva consciousness, its dissemination, its expansion to the different zones, social zones. And in that, RSS plays very important role. So RSS appears in that. When RSS appears in the academic inquiry, then problem comes because many stereotypes hinders, stereotypes tries to dominate our perceptions, academic perceptions, to understand when we go to understand RSS. So field help you to deconstruct those stereotypes, because field gives us a new kind of dynamics, new kind of social dynamics, new kind of social story, social experience, and those social experiences tells us, look, what you have heard about the RSS. In fact, it's not true. RSS is entirely different organization, and the way they are working is amazing among marginal and grassroots community. So I try to propose that RSS is not the way we have perceived RSS. That's why I've given the reinventing RSS, perception and reality. So that's the first thing. Second thing, I believe that RSS, how much, whatever we know about the RSS, it's not all. No? We know partly about RSS. So it's like elephant. No? Seven blind people were trying to describing the elephant. So and I used to call RSS whatever we know, it's the tips of iceberg. So I never claim that I am expert of the RSS, and this book is documenting
all of the RSS. But I have tried to document RSS through the marginal voices of the marginal side of the voices, not right up, margins from the margins, and the margins because and through the fieldwork experience. Whatever I have heard about the RSS and whatever I saw the RSS working among the marginal community. So not from top to the bottom, but the bottom to the top. There is a one way to understand RSS that we can know through their, we can understand them through their speeches, through their writings, through their official deliberations. And there are so many attempts like that. But in this book, I have tried to see RSS from the bottom. That's the, in one way, it's a paradigmatic shift, I can't say, but paradigmatic change. So, so I saw that RSS is constantly changing, and changing for what? And changing for appropriating others. RSS is constantly adapting new reality and try to enter in the difficult zones which are projected as opposites, as the zone of opposites of the RSS, like Dalit, like mostly Ambedkarite radical discourses and the left discourses try to project Dalit as against of the RSS, because RSS, their perception is a Brahminical organization. So that's the counter is that. But if you go and see the way they are entering in the RSS, in the working among Dalit and marginal community, that will change your entire perception. And RSS Pracharak don't inform their caste. But if you do the grassroots work of the Pracharaks, those who are working at the local levels, you can find so many Dalits are entering and they are working with them. So that notion, those notions are, I say, stereotypes, and I say chaya. We are fighting. We are fighting with the image of the RSS, not the reality. So elephant, popular muhavra I used to tell, हाथी चली गई और उसकी छाया रह गई और छाया को हम पीट रहे हैं. No, so this book is about that, and this book is also addressing the making of new politics, social politics, which started emerging after. No, it's not after 2014. After 2014, it started. It became visible, but they were working on their agenda since long time, and those social politics was immersed in the BJP politics through the influence of the RSS. So I tried to say that in the making of BJP politics, there is a strand. There is one strand that is the strand of the conventional politics. There is another strand is the trend of the social politics, and that social politics emerged due to the influence of the RSS. So RSS how it influenced the making of the politics of India and also democratic politics. And this social politics is very interesting. I don't have time to explain what is this social politics. Then this book also documents how Hindutva common sense, Hindutva consciousness emerged as a Hindutva common sense for the people of the largest section of the people in India, and that is due to the hard working of the RSS cadres. And I tried to document how they work, the creativity in their function, in their working, creativity in their mobilizational process, their expertise in doing that. So, and in the last, I tried to see how, because of their influence, a new language and diction of politics in India emerged. And they indirectly influence, they don't directly make the language, but they indirectly influence of the making of the diction of the Indian politics in India. And that is that is democratically oriented, or a kind of democratic diction of Indian politics also. This language carries many various things, but also democratic constituents. This language carries. So the making of the language, and then the Corona intervention. I used to say that this book documents the making of Hindutva public.
You all are the part of that Hindutva public. Sorry. You all are the part of Hindutva public. You all are the part of Hindutva public. So how Hindutva public is being formed due to the hard work of the RSS people? That's one of the research questions which I have addressed in this book. And in the making of this Hindutva public, Corona intervention is very important. People used to say that this Corona will rupture the making of the project of Hindutva. But I see that during Corona time, the way RSS workers, cadres worked with the common people to help them, that makes a space for them to revive their relationship when the Corona time, when they will come to the normal time. And again, this making of Hindutva public, the project of making of Hindutva public. So it's a continuum. It's not going to be ruptured by the Corona intervention. Corona intervention is for हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही भयावह अनुभव है, लेकिन इस अनुभव में भी जो एक मानवीय भाव है वो चलता रहा है. And Sangh is work with that मानवीय भाव. And I used to say that Sangh अपने कामों से एक हिंदुत्व को एक सामाजिक भाव के रूप में परिवर्तित कर दिया है. हिंदुत्व एज ए सोशल भाव, आई यूज्ड टू से हिंदुत्व सोशल भाव, यू कैन से हिंदुत्व नॉट हिंदुत्व एज सोशल भाव, हिंदुत्व सोशल भाव. सो हिंदुत्व कॉमन सेंस एंड हिंदुत्व सोशल भाव, these two processes emerged due to the hard work of the RSS with the people and grassroots people. So distribution of democracy take place in two ways. One is providing dignity to the community and distributing the democratic resources through various plans, policy, projects, and programs. So Sangh works in both ways. They are not part in the government, but they provide the dignity to the communities through various kinds of providing the respect to their icons, heroes, histories, identities, and trying to create a social bhav. Through that, this community become empowered, and they come in a position to take the advantage from the democracy. Because to take advantage from the democracy, you need to prepare a condition, and Sangh tries to make this condition in this ways. I always say that Sangh always influence our society in different ways, and whenever I say Sangh, I always talks about Sangh Parivar too, not only Sangh as a main organization, but Sangh Parivar and how and their various organizations, how they work. So this book is all about this. Lastly, I'm going to take 2 minutes to tell that the way this book created a kind of discourse. One discourse is that mostly people are not able to accept that Sangh is changeable. Sangh always change. Sangh change. Sangh always evolve. You can say change, maybe not the right term. Sangh always evolve in terms of idea, and also it creates its own that effect, that change, those changes in the ideas brings changes in the organization. And Sangh, the way Sangh recently Ram Madhavji wrote wonderful piece in Open magazine, Sangh and the modernity. How so the Sangh every day make itself punarnava to adopt others, to adopt its opposite, and that the capacity is the unique capacity of the Hindutva Parivar, or especially Sangh, to always link and to always associate, to include, to appropriate, to adopt, to be adapted, and that kind of conditioning is very unique which emerged through the Sangh activities. So in this way, this book is going to. So one thing is. The second thing is, people are mostly asking questions to me that what about Muslims? No,
You are saying that they include others. They are very inclusive. But what they are going to do with the Muslims? I used to tell that I don't have fieldwork and research among the Muslims, so I couldn't discuss this issue in this book. But maybe you can write a new book of the Sangh activities among the Muslims, their Sevakari among the other communities. And that's I used to tell that Sangh is not is less research organization, and we need to do as much as research possible on various issues and aspects and their riches, their the way of working functions, and that's one of the things which we need to address. And I used to say this appetite of including others is a great thing. And in this way, this book, I'm not. It's very difficult to tell book 15 minutes or 20 minutes, but I have tried to pose the main discourses. When you will read the book, you can find this. It's appearances of those arguments in a bigger way, in terms of narrative or in the form of narrative. So मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करता हूँ, और जो आगे बातें हमारे बाद के वक्ता बोलेंगे और उनसे जो बातें निकलेंगी उस पर अगर कोई प्रश्न आएगा तो हम लोग उस प्रश्न का समाधान के ऊपर पर विमर्श भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your brief remarks on your book. Definitely, it's not easy for you to have an overview of your book in just 20 minutes, because it's a 200 plus pages book which I have read, and many of our friends have already read. And Ram Madhav ji also told me that he has read this book, and he also used one of the argument of your book in his famous article in the Open magazine. And what I find in your book is, sir, that first time someone has tried to evaluate the activities of RSS in an autonomous academic space. Because whenever we study about RSS or its affiliate organization, so we try to see it through the prism of communalism or secularism. Even in the syllabus of political science in Delhi University, means the topic about RSS find a space in the topic of communalism and all. So the thing is that we need to study the RSS and its activities, its affiliate organization in an autonomous space. Hindutva is not about versus anything. Hindutva has its autonomous space where it functions, whether in the field of seva through Antyodaya or in the field of politics or in any other field. So thank you very much, sir, for coming up with this book, where you have done I can say after reading this book that activities of RSS, you have done great justice with RSS, I can say. So I would like to invite Ram Madhav ji to share his view about book, about activities of RSS, about its seva activities, about all the activities which RSS does or planning to do to reach the unreached community in present time or in coming times. So Sri Ram Madhav ji. My namaskars to all the eminent academics who are present in this audience of Academics for Nation. डॉक्टर बद्री नारायण जी ने अपने किताब के विषय के संदर्भ में कई चीजें आपके सामने रखी है. Several people have attempted to write about RSS. As Badi Narayan ji himself mentioned in his initial comments, and also he mentioned about it in his book also, that there were several people who have authored books on RSS, Hindutva, Hindu nationalism, etc., etc. He specifically referred to two people, Walter Anderson and D.R. Goyal. Many others are also there who continue to write about RSS in the form of articles, in the form of journal presentations, and of course, in the form of books also. But one thing that stands out in Badi Narayan ji's book is that he has done this book by trying to understand the organization from the first-hand accounts. Normally क्या होता है,
संघ के ऊपर या हिंदुत्व के ऊपर 400 पेज का किताब भी लिखा जाता है बिना किसी संघ के या संगठन से जुड़े हुए अधिकृत व्यक्ति के विचारों को सुनते हुए। जेएनयू से लेकर पेरिस तक ऐसे बड़े विद्वान फैले हुए हैं who have written volumes about RSS without ever talking to any single RSS person. But बद्रीनारायण जी के केस में उन्होंने ऐसा नहीं किया. In fact, one thing that I must mention here about this book was this honesty. He was honest in admitting that he had some interaction with RSS in his when he was young, but subsequently he was under the spell of a different kind of political ideology, and he returned to RSS with an open mind. And purely as an academic with an open mind, without any prejudices or biases, he tried to approach the RSS. आपने उनका अभी वक्तव्य देते समय भी उनका जो एडमिशन आपने माना, आपने सुना है कि it is rare for authors to admit that what I have understood is only the tip of the iceberg. कोई नहीं कहेगा, लोग कहेंगे कि नहीं मैं तो बहुत अध्ययन किया, उसी का नतीजा है ये किताब. बट बद्रीनारायण जी का ऑनेस्टी जो है वो एक्चुअल आरएसएस के बारे में सच्चाई है. आरएसएस को समझना बहुत कठिन है और I always say this, that it is very difficult to understand RSS but very easy to misunderstand. तो कई बार गलत धारणाएं अनेक कारणों से निर्माण करके फिर उसके आधार पर अपना लेखन करना, ये सब हम कई जगह देखते हैं. बट विथ एन ऑनेस्टी ऑफ पर्पस उस सब्जेक्ट को अप्रोच करना, फिर उस पे जो भी निष्कर्ष आया है. अब कोई ये कह सकता है कि बद्रीनारायण जी बदल गए हैं, अब क्योंकि सरकार बदल गई वो अब बीजेपी आरएसएस की एक तारीफ या पॉजिटिवली लिखना शुरू कर दिया. आई डोंट सी एनी तारीफ इन दिस बुक, ऑनेस्टली स्पीकिंग. He, whatever observations he has made in this book were honest observations. They happen to be positive observations because RSS is a very positive organization. But कोई ये भी कह सकता है आप संघ वाले बन गए हो. इस प्रकार ऑनेस्टली अप्रोच करने वालों की संख्या बहुत कम है. I know of another scholar. In fact, बद्रीनारायण जी उनका भी जिक्र किया है किताब में, प्रोफेसर वाल्टर एंडरसन. He spent at least 1 decade studying RSS, meeting RSS people. He met Guruji Golwalkar, he met Balasaheb Devaras. Then he came out with that first book, The Brotherhood in Saffron, purely academic work. उसके बाद अभी दूसरा भी उनका एडिशन आया है जिसका भी जिक्र इस किताब में बद्री जी ने किया था. बद्रीनारायण जी tried to focus on the very outwardly manifest dimension of the RSS, which is सेवा and समरसता. ये जो बाहर एकदम आरएसएस का दिखते हैं उनमें प्रमुख दिखने वाले चीजों में ये दो चीज भी है. But as he rightly said, that is not the RSS all about. तो इसलिए आरएसएस के अनेक रूप है, उन रूपों के छाया भी है, शैडोज भी है. शैडो भी फॉलो करते हुए लिखने वाले, रूप को भी समझने का प्रयास करने वाले अच्छे ही प्रयास करेंगे. बट आरएसएस इन सबके परे एक चीज है. जब रामायण में राम रावण का युद्ध आया था तो वाल्मीकि ने एक श्लोक लिखा कि राम रावण युद्ध का वर्णन कैसे करना है, हाउ टू एक्चुअली डिस्क्राइब इट. तो उनका कहना था कि गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमः राम रावण योर्युद्धम राम रावण योरिवा. मीनिंग how do you describe the sky? It is the sky. गगनम गगनाकारम. तो मैं ये कह रहा था कि एक यूनिक संगठन आरएसएस है.
वास्तव में इसकी यूनिकनेस इतना ज्यादा है कि ये संगठन भी नहीं है। आरएसएस संगठन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कभी आरएसएस को देखना है तो आपको या तो आरएसएस का किसी बैठक में बैठना पड़ेगा या आरएसएस के शिक्षा वर्ग में जाना पड़ेगा, वही आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल रूप आपको दिखेगा। बाकी तो आरएसएस समाज का ही एक छोटा एक्टिविटी है। आरएसएस ने जानबूझकर ये रास्ता अपनाया है प्रारंभ से। तो आरएसएस एक पैराडाइम का है ना, इस शब्द का प्रयोग बद्री जी ने किया इसलिए मैं इस शब्द के आधार पर ही बोल रहा हूं। एक पैराडाइम है, एक पैराडाइम के रूप में इस समाज में एक पैराडाइम को खड़ा करने के लिए चलने वाला एक प्रयास है। इट्स जस्ट एन एफर्ट, इट्स एन आइडिया। मैंने मेरे लेख में भी ये विषय का जिक्र किया। इट्स नॉट इवन एन आइडियोलॉजी। जो संघ के इसमें लोग हैं, संघ के शिक्षा वर्ग वगैरह में गए हैं, उनको एक उदाहरण जरूर सुनने को मिला होगा। नए लोगों को नया उदाहरण भी हो सकता है कि संघ में कहा जाता था कि एक बार गुरुजी से पूछा गया कि हाउ कैन वन अंडरस्टैंड आरएसएस आइडियोलॉजी, कैन यू रिकमेंड सम बुक्स। तो गुरुजी का रिप्लाई था यस ऑफ कोर्स, द वेदास, द पुराणास, द महाभारत, the Ramayana, the Bhagavad Gita, this is all our literature. This is how you understand RSS. Meaning संघ ने अपना कोई विचारधारा नाम का चीज भी निर्माण नहीं किया। संघ एक विचार को लेकर चलने वाला एक प्रयास है। It's an idea which has certain paradigmatic transformation as its ultimate vision. उसके लिए चलने वाला एक संगठन है। इसको समझना बहुत कठिन काम होता है। अभी तो फिर भी थोड़ा आसान हो गया, बद्री जी को और लोगों को आसान हुआ। 1980s 1990s के पहले इतना भी संभव नहीं होता था, क्योंकि संघ वाज अ वेरी एनिग्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन इन दोस डेज। संघ तो किसी से इंटरेक्ट करता ही नहीं था, संघ के पास कोई प्रचार साधन नहीं था, करना ही नहीं चाहता था। तो उन दिनों में संघ को समझने के लिए लोगों को बहुत मुश्किल होता था। इट यूज्ड टू बी सीन एज अ वेरी सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इमरजेंसी के समय में मजाक चलता था कि संघ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये धारणा थी। तो स्पाइस को भेजा गया, जासूसों को भेजा गया, पता करो क्या होता है। तो कोई जासूस गया एक शाखा के बाहर, इमरजेंसी के पहले की बात मैं कह रहा हूँ। संघ के बारे में जो धारणा होती थी ना, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, तो शाखा में बाहर खड़ा रहा तो 1 घंटे भर देखा तो वहां तो कोई सीक्रेट था ही नहीं। या तो नारे दे रहे थे, स्लोगन दे रहे थे, भारत माता की जय, ये वो मिलकर खेल रहे थे, योगा कर रहे, सब कर रहे थे। फिर बाद में मंडल में बैठे, फिर किसी ने भाषण दिया, वो भाषण भी कोई सीक्रेटली नहीं दिया, जोर जोर से बोला है। गीत भी सब खुलकर कह रहे थे। तो अंत में जब प्रार्थना के लिए सब लोग खड़े हुए, एक ऐसा चीज उस व्यक्ति के, उस जासूस के ध्यान में आया कि एक ऑर्डर दिया गया। उसके बाद वो लाइन का आखिरी व्यक्ति चुपचाप गया, जाके लाइन के पहले व्यक्ति के कान में कुछ कहा। उसके बाद इस तरफ से एक व्यक्ति निकला, उन सभी के कान से एक शब्द कोई लेकर सामने वालों के पास गया। वो सामने वाला जो मुख्य शिक्षक है, वो सीक्रेट मैसेज लिया, वो लेकर भाग कर गया, भाग कर जाके उस शाखा का जो कार्यवाह है उनको बताया। उसके बाद प्रार्थना करके चले गए। तो जासूस को लगा कि ये हाँ है सीक्रेट आरएसएस का, कोई सीक्रेट मैसेज हैज बीन ट्रांसमिटेड थ्रू दिस प्रोसेस। तो शाखा होने के बाद उसने रोका, तो मुख्य शिक्षक को पूछा, व्हाट वाज दैट सीक्रेट मैसेज दैट यू हैड कन्वेड टू योर कार्यवाह? आपने भाग कर गया, इतना इमरजेंसी क्या था? उसने कहा कैसा है, आज शाखा में तरुण 12 थे, बाल 10 थे, शिशु 3 थे, 2 अतिथि थे, ये था सीक्रेट हमारा। संघ का इस प्रकार का एक एनिग्मा रहता था। 80s 90s के बाद संघ का एनिग्मा थोड़ा कम हुआ है। कुछ उसमें संघ का भी प्रयास रहा, संघ ने खुद भी अपने आप को ओपन किया, पर साथ साथ कुछ ऐसे ऐतिहासिक परिणाम भी हुए
जिसके चलते संघ के बारे में समाज का ध्यान भी बढ़ा है, संघ को समझने का, मिलने का, जुलने का प्रयास भी संघ में बढ़ा है। जब वाजपेयी जी की सरकार बन गई थी, तब संघ के सामने एक संकट आया। संघ इतना एनिग्मा छोड़कर बाहर आ गया, समाज के सामने आ गया कि सब लोग संघ के बारे में बहुत व्यापक धारणाएं बनाने लगे। यहां तक कि आज वाजपेयी जी ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे वो भी नागपुर तय करता है। इतना दूर तक उन दिनों में सोचना शुरू हो गया समाज में। सब सोचते थे कि जो सरकार बनी है वाजपेयी जी की, वो संघ ही चलाएगा। उस समय संघ को ये जरूर लगा कि शायद हमको थोड़ा समाज के जो इस समय के क्यूरियोसिटी है उसको दूर करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो उस समय एक व्यवस्था बनी स्पोक्स पर्सन की। 2001-2 में वो व्यवस्था बनी। स्पोक्स पर्सन का काम था कि संघ के बारे में कोई किसी को सच में शंकाएं है, कोई गलतफहमियां बन रही हो तो उसको दूर करना, इतना ही था उसका पर्पस। क्योंकि संघ को तो स्पोक्स पर्सन के थ्रू समझाना संभव ही नहीं है, बट किसी को कोई गलतफहमी हो जाता है, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, उतना समझाना था। 4 साल के अनुभव के बाद संघ में ये निर्णय में आया है कि ये स्पोक्स पर्सन रखना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि संघ को फिर स्पोक्स पर्सन के थ्रू समझने का प्रयास लोग करेंगे। जो स्पोक्स पर्सन कहेगा वो संघ है, ऐसी भी धारणा बनेगी, क्योंकि संघ वो है नहीं। तो फिर 2006 में संघ ने तय किया कि स्पोक्स पर्सन को भी हम नहीं रखेंगे। इस पर चर्चा हुई, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई। तो कुछ पत्रकारों ने लिखा कि अब राम माधव जी को स्पोक्स पर्सन से हटा दिया। क्यों हटाया? आडवाणी जी के पाकिस्तान यात्रा पर इन्होंने तीखी टिप्पणियां की, इसलिए मुझे हटा दिया। तो क्यों वो पद हटाना पड़ा, इससे आप समझ सकते हैं कि उस पद को भी ऐसे समझने लगे कि संघ इस प्रकार का उस पद के बारे में धारणा रखता है। पर संघ ने यह तय किया कि नहीं, स्पोक्स पर्सन रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि संघ को अपने आप जो लोग समझना चाहेंगे समझेंगे। पर यह बात जरूर सच है कि 80s और 90s के बाद संघ में जो खुलापन आया है, वह कई लोगों को संघ के गतिविधियों के अंदर झांकने का अवसर दिया। एक अच्छी बात हुई है। मैं बद्री जी का किताब भी देख रहा था, उसमें ज्यादातर जो उनका अनुभव या उनका जिक्र है वो 80s के बाद का है। 80s के पहले का आपको संघ को समझना है तो एक ही सोर्स है, क्या है? परम पूजनीय गुरु जी के भाषण। और परम पूजनीय गुरु जी के भाषण 95% हिंदू धर्म, संस्कृति, हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र पर होते थे, संघ पर तो होते ही नहीं थे। क्योंकि मैंने जो कहा है, संघ कोई एक विचारधारा, आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाला एक संगठन नहीं खड़ा करना चाहता था। संघ ही समाज के एक पैराडिग्मेटिक चेंज के लिए एक प्रयास करने वाला, एक विचार रखकर चलने वाले लोगों का एक प्रयास रहा है, एक मूवमेंट रहा है। आज भी वह केवल वो मूवमेंट है, याद रखना। इट विल नेवर बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन। द डे इट बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी कन्फाइंड टू इट्स बिल्डिंग। संघ में हर एक लेवल पर चर्चा करके कुछ कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए, जिसका जिक्र बद्रीनारायण जी के किताब में विस्तृत है, जरूर पढ़ना चाहिए कि ये जो सेवा का डायमेंशन है संघ में, 2 प्रकार की सेवा का डायमेंशन बना। एक डायमेंशन बना ट्राइबल समाज के अंदर जाना है, वनवासियों के बीच में जाना है। तो वनवासियों के बीच में जाना है, ये एक डायमेंशन, इसकी शुरुआत 1950s में हुई, जिसका जिक्र इस किताब में विस्तृत है। पर उस समय ये आइडिया आया एक बाला साहब देशपांडे नाम के कार्यकर्ता के दिमाग में आया। उन्होंने कहा कि साहब, मैं जाके वनवासियों के बीच में काम करता हूं। उस समय के संघ के बुजुर्गों ने, गुरुजी वगैरह ने कहा ठीक है, चलो करो। शुरू हुआ संघ में सेवा, जिसका इस किताब में विस्तृत व्याख्या और वर्णन है। सेवा भी ऐसे ही शुरू हुई कि डॉक्टर जी के जन्म शताब्दी का वर्ष आया, तो उस समय कई लोगों को लगा कि अब हमको सेवा के कार्य शुरू करना है। तब तो संघ में बड़ी चर्चा चली कि क्या है, संघ कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? संघ को अपने आप को सेवा संस्था का परिचय देना है क्या? आइडेंटिटी देना है क्या?
बड़े बड़े संघ के वरिष्ठ जो पदाधिकारी थे उस समय के, उन्होंने विरोध किया। नहीं, संघ का काम सेवा करना नहीं है उस समय, पर क्योंकि स्वयंसेवक चाहते थे, संघ के लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, आप इस दिशा में भी काम करो। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि केवल बद्री जी ने कहा इसलिए नहीं कह रहा हूं, आमतौर पर ये जो समाज के सामने जो इस समय आयाम संघ के है, डायमेंशंस जो संघ के है, उन सारे डायमेंशंस को संघ की एक स्ट्रैटेजी है, ऐसे कई लोग मानते हैं। संघ को लेकर, संघ की स्ट्रैटेजी को लेकर संघ के लोगों से ज्यादा बाहर के लोग जानते हैं। बट मैं आपको इतना जरूर कहता हूं, संघ स्ट्रैटेजी को लेकर चलने वाला संगठन नहीं है। ये कोई स्ट्रैटेजी बनाकर काम करो, ये संघ की पद्धति नहीं है। संघ संवेदना से काम करने वाला लोगों का संगठन है। संघ क्या है, इसको थोड़ा ध्यान में रखने पर ये स्ट्रैटेजी शब्द संघ को कैसे फिट नहीं होता, ये हमारे ध्यान में आता है। संघ अगर स्ट्रैटेजिक होता तो किसी चीज को हासिल करने के लिए इन द मॉडर्न टाइम्स बेस्ट रूट वुड बी द सोशियो पॉलिटिकल रूट। You want to achieve anything, you take the socio-political route, you will achieve it easily. कार्ल मार्क्स ने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था 1850s में, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को एक सोशल आइडियोलॉजी के रूप में प्रतिपादित किया था। उनके लिए सोशियो पॉलिटिकल एक इंटरमीडिएट स्टेज थी। आप वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को केयरफुल अध्ययन करेंगे तो उनका कहना था कि अंततोगत्वा यू विल रीच ए स्टेज वेयर द स्टेट विल विदर अवे, राज्य नहीं रहेगा। ये जो प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप नाम का चीज है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है। वहां तक आने के बाद अल्टीमेटली स्टेट विल विदर अवे। बट कोई दुनिया में किसी कम्युनिस्ट देश में स्टेट विदर अवे हुआ क्या? क्योंकि जैसे ही मार्क्सिज्म पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल रूट लिया, लेनिन जब अपना फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रशिया में स्थापित किया तो तुरंत लेनिन ने डिक्लेयर किया कि वो जो विदरिंग अवे ऑफ स्टेट वगैरह है वो मार्क्स का आइडिया था, मेरा आइडिया नहीं है। मेरा तो ये है कि कम्युनिस्ट सत्ता शाश्वत रहेगा। 100 साल पहले जो लेनिन ने कहा था, 100 साल बाद आज शी जिनपिंग भी वही कहेगा कि मैं जब तक हूं मैं ही रहूंगा, कोई विदरिंग अवे ऑफ स्टेट नहीं होगा। आरएसएस ने सोशियो पॉलिटिकल को केवल एक माइनर डायमेंशन माना है, सोशियो कल्चरल पैराडाइम लेकर ही संघ चला है, तो थ्रू सोशियो पॉलिटिकल नहीं। इसलिए संघ का जो काम होता है, इसके परिणाम से कोई कहीं राजनीतिक उसका कोई रिफ्लेक्शन आता है तो वो केवल इंसिडेंटल है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। किसी को प्रधानमंत्री बनाना या कहीं सरकार स्थापित करना, इस लक्ष्य से संघ कोई काम करता हो ऐसा कतई नहीं होता है। हम हमारा काम दूसरे लक्ष्य से कर रहे हैं। संघ ने जो काम करने का तय किया है वो दो बाउंड्स के बीच में करने का तय किया है। एक बाउंड रखा है कि भाई व्यक्ति को बनाना है ना, संस्कार देना है, यू हैव टू बिल्ड अ मैन विद कैरेक्टर। सेकंड बाउंड रखा है सोशल यूनिटी है, समाज के विभिन्न स्तरों पर यूनिटी खड़ा करना। ये दो बाउंड्स के बीच में रहकर तुम कुछ भी करो। क्या करना है, संघ ने कभी कोई निश्चित तय नहीं किया, कुछ भी कर सकते हो एज फार एज दिस टू बाउंड्स आर नॉट वायलेटेड। इसलिए संघ में एक कहा जाता है, संघ क्या है, संघ एक पावर हाउस है। एक कहा जाता है संघ में पावर हाउस यानी क्या है, वी विल जस्ट क्रिएट गुड पीपल
और उनको एक विजन देते हैं, समाज की यूनिटी के लिए काम करना है, बाकी तुम करो ना कैसे करना है। उस प्रकार का जो एक डायरेक्शन लेकर जो लाखों लोग स्वयंसेवक बनकर जो काम करते गए उसमें से डायमेंशंस विकसित होते गए। और संघ के बारे में एक धारणा होती है कि संघ एक चालकानुवर्तित्व पर चलने वाला संगठन है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर मुंजे जाकर मुसोलिनी से मिलकर आया, तब से संघ में ये एक प्रकार का डिक्टेटोरियल सिस्टम आया है। टॉप मैन, सरसंघ चालक इज ऑल पावरफुल। वो तय करते हैं, जो वो तय करते हैं वो सब पालन करते हैं। जरूर संघ में जो तय होता है उसका पालन होता है, पर वो केवल संगठनात्मक चीजों तक सीमित है। संघ का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पावरफुल व्यक्ति टॉप मैन नहीं है, लोएस्ट मैन है। वो जो सबसे नीचे रहता है वो तय करता है कि संघ का विचार किस प्रकार करने से ज्यादा स्प्रेड होता है, संघ का काम ज्यादा जिस प्रकार करने से आगे बढ़ता है वो तय कर लेता है। वो करके फिर काम शुरू करता है। इसलिए संघ कई मिथ्स पर चलता है। वन सच मिथ इज दिस एक चालकानुवर्तित्व। इट्स अ मिथ, क्योंकि 2009 में हम सब लोग, जो कुछ लोग संघ में जो कुछ युवा लोग थे, हम लोग एक बैठक में बड़ा आग्रह किए कि अब हमको निक्कर छोड़ना है। 2009 में मैं कह रहा हूं। संघ अपना गणवेश को कब बदला था? 2015 में। निक्कर टू पैंट में आने के लिए संघ को 6 साल लगा है। इसके 2 कारण है। एक कारण यह है कि संघ निक्कर से पैंट में शिफ्ट होना है, ये कोई नागपुर में या दिल्ली में बैठने वाले व्यक्ति तय नहीं करता है। इसके लिए 1.5 साल तक टॉप से नीचे तक हमको बैठक लिए गए। सभी जिला में जाकर पूछा गया क्या निक्कर से पैंट में जा सकते हैं क्या? तो आप कह सकते हैं सारा तो प्रक्रिया 6 महीना 1 साल में हो सकता है, नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ बुजुर्ग स्वयंसेवकों ने कहा कि देखो भाई, हम तो अंग्रेजों के समय में संघ में आए, तो अंग्रेजों का जो पंटलून है इसके विरोध में हम संघ में आए। अब इतने साल बाद आप फिर अंग्रेजों का पंटलून पहनने को हमको कह रहे हो। तो संघ ने कहा कि ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं करेंगे। बट दूसरा कारण यह है, संघ के निक्कर में नहीं है, या संघ इसके पैंट में नहीं है, इसके गणवेश में नहीं है। तो संघ का जो विकास क्रम है उसको इसलिए इस रूप से ही समझना होगा कि संघ को चलाते कौन है? स्वयंसेवक चलाते हैं। इसको जो लोएस्ट लेवल मेंबर होता है वो चलाते हैं। पर आप पूछ सकते हैं, पर आप सबको क्या करते हो? प्रचारक है, सरसंघ चालक है, सरकार में, ये संभालते हैं, इसको संभालने वाले हैं। बट संघ को वो लोएस्ट लेवल पे व्यक्ति जो है वो चलाते रहता है। उसका एक जो डायमेंशन था वो सेवा और एक समरसता का पक्ष, जो इस किताब में बद्रीनारायण जी ने विस्तृत चर्चा किया था। ये संघ ने बहुत विचार करके इस दिशा में स्वयंसेवकों को कहा कि आप चाहिए, जरूर करिए काम। पर इसमें मैं फिर से कहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बद्रीनारायण जी, संघ का कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इस किताब में कुछ जगह शब्द प्रयोग हुआ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है कि संघ किसी चीज को अपनाने का प्रयास किया है, वो इनका नहीं था पर लेने का प्रयास किया है। वो अर्थ असामान्य अर्थ में होता है। बद्री जी उस अर्थ से उसका प्रयोग नहीं किया, बट हेडिंग साइड हेडिंग्स में मैंने नोटिस किया अप्रोप्रिएशन शब्द। संघ किसी चीज का अप्रोप्रिएट करने का विचार ही नहीं रखता, क्योंकि संघ ये सोचता है कि इस देश में, इस समाज के अंदर जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सब होना चाहिए। कुछ हम करेंगे, कुछ और लोग करेंगे। उदाहरण के लिए इस किताब में अंबेडकर की चर्चा है। अंबेडकर को संघ ने कोई राजनीतिक स्ट्रैटेजी के तहत अपनाया नहीं है। वैसे तो संघ के साथ अंबेडकर जी का व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराना रहा था। वो तो चलो संघ के शिविर में भी गए थे जब डॉक्टर जी थे, वो एक अलग पक्ष है। पर डॉक्टर जी के देहांत के बाद भी, आजादी के बाद भी
डॉक्टर अंबेडकर संघ के दिल्ली के तत्कालीन नेतृत्व के साथ संबंध में रहे। गांधी अच्छा के संदर्भ में जो कुछ नेहरू जी का विचार चल रहा था, उनके विषय में संघ के कुछ लोगों से अंबेडकर जी की चर्चा भी होती थी। ये बात सही है कि अंबेडकर हिंदू समाज के अंदर की कुरीतियों के विषय में स्पष्ट अपना मत रखा, स्पष्ट अपना विरोध रखा। पर ध्यान रखिए कि अंबेडकर पहले नहीं थे वो काम करने वाले, और अंबेडकर आखिरी भी नहीं रहे। उसके बाद भी सब हिंदू समाज के अंदर की कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाने वाले लोग थे, आज भी है। संघ भी उसमें है। इस समाज में कुरीतियां है, उनको दूर करना, इसलिए संघ का काम चल रहा है। इसलिए उस दिशा में जो भी प्रयास कर रहे हैं, उन सभी प्रयास को संघ अपनी ओर से सम्मान से देखता है। जितने प्रयासों को संघ सम्मान से देखता है, उन सबके प्रति अपना सम्मान संघ व्यक्त करता है अपने मॉर्निंग प्रेयर से। संघ का एक मॉर्निंग प्रेयर है, प्रातः स्मरण हम बोलते हैं, और अंबेडकर जी का नाम प्रातः स्मरण में बहुत पहले आ गया। उनके स्वर्गवास के बाद बहुत कम समय में ही उनका नाम संघ के प्रातः स्मरण में आ गया। आज भी रोज सुबह, जिसको अंबेडकर जी का सामाजिक समरसता का कार्य से कोई संबंध ही नहीं है, संघ का एक भारत विकास परिषद है, कोई ऐसा दूसरा संगठन है, उसमें वो भी उनका रोज प्रेयर में उनका नाम लेता है। क्योंकि अंबेडकर हमारे लिए कोई स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं है कि उनको अप्रोप्रिएट संघ इस प्रकार सोचकर चलने वाला संगठन है। तो इस किताब में जो बद्री जी ने जो विषय सामने रखा है, वह संघ का इस समय जो दो बड़े डायमेंशंस पर काम हो रहा है, उसका जिक्र है। सामाजिक समरसता एक बहुत बड़ा पक्ष है। संघ, मैंने जैसा कहा, जब संगठन नहीं है, ये बात कहा, तो इसके कारण है। इस बीच पे आप में से कुछ लोग देखे होंगे, प्यू रिसर्च फाउंडेशन का एक इंडिया के बारे में रिलीजियंस पर स्टडी प्रकाशित हुआ। उसमें उस स्टडी में उन्होंने ये कहा कि 90% इंडियंस रिलीजियस है। प्यू वालों को अभी समझ में आया है, बट स्वामी विवेकानंद तो आज से 120 साल पहले उन्होंने कहा कि धर्म प्राण भारत है, रिलीजन इज द सोल ऑफ दिस कंट्री। तो उस सर्वे में उन्होंने ये बात रखी कि भाई यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, सब रिलीजियस होते हैं। संघ जब हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, इसको एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया था। समाज के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि हिंदू समाज का नाम जो जिक्र हम करते समय संघ का दिमाग इतना ही चलता है कि जो व्यक्ति हिंदू सांस्कृतिक और सभ्यता मूलक उस परिवेश के अंदर आता है, वो सब हिंदू समाज है। पर हिंदू समाज ऐसा नहीं सोचता है। हिंदू समाज अपने आप को जाति के नाम पर भी सोचता है, अपने आप को मजहब के नाम पर भी सोचता है। कई अपने आप को हिंदू कहते हैं कि इस रूप से कि वो जैन से अलग है, बौद्ध से अलग है, सिख से अलग है, ऐसा भी हिंदू अपने आप को कहते हैं। मुसलमान ईसाई से तो अलग है ही, ऐसा ही माना जाता है। बट संघ तो उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। हिंदू शब्द का एक सांस्कृतिक परिभाषा के अंदर, जिसके तहत कुछ मूल्य जो इस देश के सनातन मूल्य है, उसके आधार पर यहाँ का पैराडाइम खड़ा होना है, समाज खड़ा होना है, उस दृष्टि से संघ हिंदू शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। आजादी के आंदोलन के समय इसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उस समय मदन मोहन मालवीय जी से लेकर गांधी जी से लेकर सब लोग इसकी बात कर रहे थे, सावरकर इसकी बात कर रहे थे, स्वयं अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर तो यही कह रहे थे कि भाई हिंदू समाज में सुधार आना है, सब कह रहे थे, तो संघ भी कह रहा था। पर आजादी के बाद इस शब्द को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि संघ कोई समाज की बात कर रहा है, वो अग्रवर्ण समाज है, वो हिंदू है, इस प्रकार की धारणा बनी, जिसका जिक्र भी इस किताब में बद्री जी ने किया है। पर संघ सहज रूप से ये माना कि सांस्कृतिक दृष्टि से
उच्च नीच का भाव भी यहाँ स्वीकार नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न पंथ संप्रदाय है वो अलग नहीं है। उसी दृष्टि से संघ इस देश के मुसलमानों के प्रति भी देखता रहा है, इस देश के ईसाइयों के प्रति भी देखता रहा है। तो संघ जैसे जिस प्रकार संघ इस सोच को लेकर स्वयंसेवकों को प्रेरित किया, तो स्वयंसेवक जाके जो सेवा कार्य हो, समरसता कार्य हो, जिसका वर्णन इसमें है, वो कर रहे थे। उसी प्रकार कुछ स्वयंसेवक जाके ईसाइयों में, मुसलमानों में भी काम कर रहे थे। हाँ, वो काम इतना प्रतीत हुआ क्या? अभी नहीं हुआ है। वो क्या आरएसएस है क्या? नहीं, आरएसएस तो सब काम आरएसएस है और कोई भी काम आरएसएस नहीं है। हमारे दत्तोपंत ठेंगड़े जी कहा करते थे, संघ कुछ नहीं करेगा। Who used to say, संघ shall not do anything. But he used to also add, स्वयं सेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। The RSS trained member shall not leave anything unattended. तो कुछ लोगों को लगा कि जैसा हम कुछ अन्य समाजों में, अन्य भागों में रीच आउट किए हैं इस अच्छे विचार को फैलाने के लिए, यहां भी जाना है। तो उस प्रकार सभी समाज बांधवों के बीच में संघ जाता रहेगा। हाँ, इस प्रक्रिया में संघ के अंदर विकास हुआ है। जैसा बद्री जी ने कहा, जरूर ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा है। प्रारंभिक फोकस ज्यादातर जो हिंदू अपने आप को हिंदू कहता था उन तक सीमित रहा है। धीरे धीरे दायरा बढ़ा है। जो समाज जैसा थोड़ा हिंदू की इस परिभाषा से, यानी जो समाज के हिंदू की परिभाषा से दूर रहा, उनके तक गया है। और अंत में जाकर और जो दूरी की सर्किल में जो लोग हैं, ईसाई है, मुसलमान है, उन तक भी संघ आज पहुंच गया है। तो एक स्वाभाविक रूप में पूरे समाज के अंदर व्यापक एक विचार को फैलाने का, एक संस्कार को निर्माण करने का काम संघ का चलता रहता है। दो सावधानियां मैं कहता हूं और समाप्त करता हूं। एक, जैसा मैंने कहा, ये कोई स्ट्रैटेजिक मूव नहीं है, एक सिंसियर संघ का विचार है कि सबको साथ मिलाकर इस समाज को खड़ा करना है। हाँ, इसका एक कोई फायदा किसी को मिल सकता है, तो राजनीतिक फायदा भाजपा को मिलता है। इस विचार को लेकर चलेंगे तो दूसरों को भी उसका फायदा मिल सकता है। कभी मैं एक बार सुना था, हमारे बाबूराव वैद्य जी स्पोक्स पर्सन थे, तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आप तो बीजेपी के साथ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्वयंसेवक बीजेपी में काम करते इसलिए साथ है, एक विचार को समझ दोनों शेयर करते हैं, अन्यथा वो अलग काम अलग है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बट आपके प्रचारक जाके वहां काम करते हैं। तो बाबूराव जी फट से बोले, हाँ, क्योंकि वो मांगते हैं, दूसरे नहीं मांग रहे हैं। तो अलग बात है कि दूसरे मांगेंगे तो देंगे क्या, उस समय सोचा जाएगा। बट संघ का इतना ही था कि संघ सोशियो पॉलिटिकल को एक डायमेंशन माना है, एक मार्ग नहीं माना है, याद रखना। इसलिए संघ का लक्ष्य देश में सरकार बनने से आसान हो गया। अगर देश में सरकार नहीं होती तो संघ का लक्ष्य बहुत दूर है, ऐसा संघ में कम से कम वो सोच नहीं है। हाँ, संघ के लोग सरकार में जब बैठते हैं तो कई चीज अच्छा करते हैं, पर संघ अपने लक्ष्य को थ्रू सोशियो पॉलिटिकल नहीं रखा है। संघ सोशियो पॉलिटिकल को एक पक्ष माना है, एक डायमेंशन माना है। इसको भी सावधानी से हमको थोड़ा समझना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में आखिरी बात है, जब डेमोक्रेसी का प्रश्न आता है तो मैंने कहा संघ तो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी वाला संगठन है। संघ में निककर भी बदलना है तो लोएस्ट लेवल में जाकर चर्चा करके वो हाँ कहेगा तो ही संघ में निककर बदलता है। तो संघ एक ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पर विश्वास करने वाला संगठन है। हाँ, ये कहते हुए संघ समाज से अपेक्षा करता है कि हमेशा इस देश का स्थापित जो संविधान का तंत्र है, जो लोकतंत्र, संविधान स्थापित लोकतंत्र, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण रख के ही हर नागरिक को चलना है। तो संघ इसलिए हर पॉलिटिकल जो इस समय का फ्रेमवर्क है उसमें फिट हो जाएगा क्या संघ? अब जबरदस्ती करेंगे तो कर लेंगे। अब संघ के ऊपर बहुत दबाव था कि नहीं,
आप जरूर एक संविधान बना के संविधान के आधार पर चलो। तो संघ ने कहा ठीक है भाई, आप आग्रह करोगे, सिर पे बैठोगे तो बना देंगे। 1949 में संघ ने अपने संविधान बनाया। 49 के पहले संघ नहीं चल रहा था क्या? और जो लोग उस समय तो उनको पता है कि संविधान की प्रति की चर्चा बहुत ज्यादा किसी से हुई ही नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं। तो संघ संविधान पर आधार पर चलता है, पर संविधान संघ के लिए है, संघ संविधान के लिए नहीं है। तो हर आज के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में संघ को फिट करने का प्रयास करना भी बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि संघ ऐसा फिट नहीं होगा, क्योंकि संघ कोई पॉलिटिकल है ही नहीं। संघ सोशियो पॉलिटिकल एक इंसिडेंटल है। संघ सोशियो सिविलाइजेशनल कल्चरल एक रियलिटी है, और इस रियलिटी का एक पक्ष जो व्यापक समाज के सामने का पक्ष है, उसको बद्री जी ने इस किताब में अपने स्वयं के अध्ययन और स्वयं के अनुभव से उजागर किया है। मैंने स्वदेशी ने जैसे कहा 200 पन्ने का किताब है, तो मैं 2-3 सिटिंग्स में पढ़ लिया। मतलब उसमें रीडेबिलिटी है कि वो केवल थ्योरी नहीं बोल रहे थे, वो कोई फिलॉसफी पर चर्चा नहीं कर रहे थे, वो प्रत्यक्ष फील्ड वर्क के आधार पर उनका जो अध्ययन है उसके आधार पर वो बोल रहे थे। इसलिए एब्सोल्यूट रीडेबिलिटी है। इट्स अ डिलाइटफुल रीड। I definitely urge each and every one of you to please read this book to understand that one tip of the iceberg of RSS हमेशा वही से शुरू होता है। तो संघ के जो स्वयंसेवक अनेक अच्छे काम कर रहे हैं, उसका एक बड़ा आयाम इस किताब के माध्यम से बद्री जी ने देश के सामने लाया। उसके लिए मैं बद्री जी को हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनका किताब सेकंड प्रिंट भी चला गया, वो स्वदेशी कह रहे थे, तो बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और भी प्रिंट्स हो, क्योंकि ये संघ के बारे में एक अच्छा चित्र समाज के सामने रखने वाला किताब है। तो हमारा भी थोड़ा स्वार्थ है ये बहुत ज्यादा बिके या बहुत ज्यादा इसका विस्तार से ये हो। ये भी आपको इसके लिए भी साधुवाद देता हूँ। अंत में एक ही बात कहकर समाप्त करता हूँ। संघ में हम कहते हैं स्वयंसेवकों को कि भाई आप संघ से प्रेरित होना, संघ के विचार को थोड़ा समझे होना, तो 10 दिशाओं में जाओ। जो अभी तक अनरीच्ड सेक्शंस है वहां भी जाओ। बाला साहब कहते थे कि 100 दिशाओं में जाना चाहिए, आसमान छूना चाहिए स्वयंसेवक। बस एक ही शर्त है, दक्ष बोलने पर थोड़ा दोनों पर शाखा में रहना चाहिए। जब स्वदेशी ऐसा कोई बैठक बुलाते हैं तो उसमें आना चाहिए। वो गए तो वही चले गए, कुछ लोग चले गए तो चले गए, जाके वहां डीआर गोयल बन गए, कुछ और बन गए वहां जाके। ऐसा नहीं बनना, रूट से जुड़ा रहना, पर अपने प्रयास से सब दिशाओं में जाना। ऐसे जो स्वयंसेवक काम करते हैं, उन्हीं की प्रतिभा से समाज में एक नया पैराडाइम खड़ा करने का प्रयास संघ कर रहा है। मैं स्वदेशी को इस अवसर मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और एक बार बद्रीनारायण जी को अपने किताब के लिए साधुवाद और बधाई देता हूं। नमस्कार। तो जो आज की पुस्तक की चर्चा है, बहुत सारी विषयों पे हमेशा चर्चा हो सकती है। आज ये किताब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व पे चर्चा है, और उसके साथ साथ संघ ने जो काम किया है पिछले लंबे समय से और जो आगे की योजना है, उन सबको लेकर ये चर्चा है। तो पहला सवाल मेरा ये है माननीय राम माधव जी से भी और प्रोफेसर बद्रीनारायण जी से भी, जो मैंने चर्चा के शुरू में भी कहा था कि जो संघ को लेके जो भी अकादमिक लेवल पे चिंतन होता है, वो दरअसल सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के पर्सपेक्टिव से ही होता है। जबकि आपने भी कहा कि संघ कोई एक विचारधारा नहीं है, माननीय सरसंघ चालक जी ने भी कहा इट्स नॉट आइडियोलॉजी, इट्स अ मेथोडोलॉजी। तो इसको लेके भी एक समझ कैसे अकादमिक क्षेत्र में बने कि जो उसके बारे में, जो उसके सेवा के कार्य हैं, जो उसके सांगठनिक पूरा उसका एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उस सबको लेके भी किस तरह से चीजों को आगे बढ़ा जाए अकादमिक लेवल पे। और जो उसका अंत्योदय का पक्ष है, सेवा का कार्य है, कभी भी हम देखते हैं तो सिर्फ सांप्रदायिकता के पैराडाइम में ही समझने की कोशिश करते हैं। क्या कोई ऑटोनोमस स्पेस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के लिए नहीं हो सकता? इस पे कैसे सोचा जाए आगे? माननीय राम माधव जी, फिर बद्रीनारायण। मैं तो इतना ही कहता हूं कि जो इस संगठन को जिस डायमेंशन से देखे है, जिस डायमेंशन समझने का कोशिश किया है, वो उस पर टिप्पणियां करते रहेंगे, व्याख्या करते रहेंगे।
पर क्या इस विचार को सही ढंग से पेश करने का प्रयास और ज्यादा लोग कर सकते हैं क्या, इस पर भी थोड़ा हमको विचार करना चाहिए। संघ इतने वर्षों में इतना तो समझ लिया है कि पब्लिक लाइफ में रहते हुए आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कोई आपका क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। क्या मार्क्सवाद का क्रिटिसिज्म नहीं होता है? क्या अन्य विचारों का क्रिटिसिज्म नहीं होता है? तो इसलिए कोई आपका क्रिटिसिज्म कर रहा हो तो वो कोई एकदम ब्लास्फेमी है, ये सोच भी सही नहीं है। होगा कई बार गलत चीजों के आधार पर ही संघ का विश्लेषण होता है, पर कोई उसको गलत समझ रहा हो तो उसको सही समझाने का भी प्रयास होना चाहिए। जैसा मुझे नहीं लगता कि बद्री नारायण जी को किसी ने प्रेरित किया हो एक किताब लिखने के लिए। उन्होंने अपने आप अपना जो सोशल साइंसेस का क्षेत्र में अपना काम है उसके आधार पर उन्होंने एक प्रयास किया करके एक अपना विश्लेषण समाज के सामने रखा है। ऐसे कई प्रयास होना चाहिए, इससे संघ का जो दूसरा पक्ष भी समाज के सामने आएगा। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि एक विरोध जो होता है वो एकदम राजनीतिक होता है। राजनीतिक कारणों से कुछ लोग जानबूझकर संघ के बारे में अनेक गलत विचार स्प्रेड करने का प्रयास करते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से कैसे टैकल करना है वो अलग प्रश्न है। बट संघ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस प्रकार है कि विरोध में जो लिखा जाता है उससे दुखी होने वाले हम में बहुत लोग हैं, पर पक्ष में अच्छा लिखने वालों की संख्या भी आज बढ़ना चाहिए। रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स, ये लिखने वाले, पुस्तक लिखने वाले, इनकी संख्या बढ़ेगी तो यह विचार अच्छी ढंग से समाज के सामने जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बद्री जी और अपना जोड़ सकते हैं। जी, बहुत पहले तो मैं आदरणीय राम माधव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से इस बहस को जो इस किताब से खड़ी हुई है उसको आगे बढ़ाया, और बहुत ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक एक्टिविज्म, नॉलेज में एक्टिविज्म से बचना चाहिए। एक्टिविज्म लाइफ के लिए अच्छी होती है, चेंज के लिए अच्छी होती है, सोशल चेंज के लिए। राम माधव जी एक एक्टिविस्ट हैं, लेकिन नॉलेज की जब बात करते हैं तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर के बात करते हैं। ये हमारी ये एकदम सही कहा आपने कि बहुत जरूरी है कि संघ के ऊपर लगातार रिसर्च हो, लगातार उसको लिखा जाए, अलग अलग डायमेंशन पर लिखा जाए। और वो कोई संघ को समझने समझाने के लिए नहीं, वो एक सोशल नॉलेज के लिए जरूरी है। समाज को, भारतीय समाज में अगर हमारे लिए इस किताब को लिखने की जरूरत या एक जो प्रेरणा है वो ये थी क्योंकि हम समाज वैज्ञानिक हैं और समाज में हो रहे परिवर्तनों को हम समझना चाहते हैं, और उनमें एक बड़ा परिवर्तन संघ के कार्यों से पैदा हुआ है भारतीय समाज में। और वो जो हिंदुत्व चेतना का एक प्रसार है, और दलितों और मार्जिनल, क्योंकि मैं ज्यादातर काम उनके ही करता हूँ उन समुदायों पर, तो उनके भीतर किस तरह से एक सामाजिक ज्ञान की रचना हो रही है वो समझने की कोशिश है इसमें। और उसमें संघ और सारी प्रक्रियाएं जिसको कहते हैं ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ये उसमें आता है। फिर उससे एक हिंदुत्व पब्लिक जो बन रही है वो कैसे स्वरूप ले रही है, ये सब समझने की कोशिश है इसमें। और हमारी जो सबसे बड़ी जो जो अभी स्वदेश पूछ रहे थे कि क्या एक सोशियो पॉलिटिक्स जो है उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, वो भी एक डायमेंशन है। और हमने इस किताब में बहुत कम काम कर पाया हूं मैं, क्योंकि जैसा राम माधव जी ने कहा कि संघ, या हम सब कहते हैं कि एक महागाथा है, और उस महागाथा को बहुत आगे बहुत सारे लोग मिलके कह सकते हैं, एक किसी से कहा नहीं जा सकता वो। तो बहुत सारे लोग जो आप रिसर्च, जो एकेडमिक फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, आप लोग रिसर्च करें, आप इंडिया फाउंडेशन है, और सब लोग मिलके आगे बढ़ाएं। और जो राम माधव जी ने कहा कि वी नीड ऑथर्स, वी नीड रिसर्चर्स, वी नीड स्कॉलर्स, और जो एक्टिविस्ट कॉन्शियसनेस तो हो, लेकिन लिखते समय और सोचते समय अपना एक ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखें। हमारी जो सबसे बड़ा संघर्ष इस किताब को लिखने में यही था कि कैसे मैं अपने को एक ऑब्जेक्टिव, उससे अपनी भाषा को साधूं, अपने कहीं भी एक कदम भी, आप संघ पर लिखना कितना कठिन है ये जब आप स्कॉलरशिप एकेडमिक वर्ल्ड में आप करेंगे तो आपको पता चलता ही होगा। एक शब्द इधर से उधर होने पर आप किसी एक पूरे बड़े सेक्शन आपको गालियां देने लगता है, एक बड़ा सेक्शन आपको वो टारगेट करना शुरू कर देता है। तो बहुत ही मुश्किल डोमेन है, और उस पर काम करना, और वो लगातार करते रहना चाहिए, और भाषा को हमेशा साध करके। और हम सब इवॉल्व करते हैं, एज ए स्कॉलर भी हम लोग इवॉल्व करते हैं,
चीजें बदलती हैं, हमारे भीतर भी मैच्योरिटी आती है। यानी जो हमारा काम 2002 का होगा, 2008 में होगा, 2015 में होगा, 2000 हो सकता है इसके बाद का जो काम हो वो और भी मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़े। और हम सब ये सब जो विचार अभी मिल रहे हैं राम माधव जी के कमेंट्स में, ये सब हमारे आगे के कामों को भी रिशेप करेंगी। तो हम सब सीखते रहते हैं, ज्ञान की दुनिया हमेशा सीखने की दुनिया है। और हमारी जो भी पोजिशनिंग है, वो पोजिशनिंग एक सोशल नॉलेज को समझने के लिए है। जी, बिल्कुल सर, ये चर्चा लगातार आ रही है अकादमिक जगत में, आप भी उससे रूबरू हो रहे होंगे। यहाँ भी हमारे कई साथियों ने पूछा है और मैं भी उसे उस विचार से साझा करता हूँ कि जो किताब की एक जर्नी रही, फैसिनेटिंग हिंदुत्व, आपकी एक किताब आई मनमोहनी मंत्र ऐसा हिंदुत्व, और वहां से लेके रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व तक, इस यात्रा को आप कैसे देखते हो? और जो उस किताब में जो टिप्पणियां थी और जो इस किताब में टिप्पणियां हैं संघ को लेके, उसमें एक हमें एक दिखाई पड़ता है कि काफी अंतर भी है। तो इससे आप कितना सहमत हैं? जो हमारे स्कॉलर साथी हैं, खास करके युवा स्कॉलर, जिन्होंने, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने दोनों किताब पढ़ी है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ संगठन से भी जुड़े और साथ में पढ़ भी रहे हैं। तो ये अपने आप में आने वाले समय में हमारे लिए, मुझे भविष्य बहुत सुनहरा दिखाई पड़ता है ऐसे साथियों को जब भी मैं अपने देखता हूँ कि वो अध्ययन भी कर रहे हैं, जैसा आपने कहा एक्टिविस्ट मोड में भी हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल काम भी से जुड़े हुए। तो ये पूरी जर्नी को, फैसिनेटिंग हिंदुत्व टू रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने ये सवाल किया है। और अगर आप रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मैंने लिखा है कि कैसे मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे मैं बचपन में कैसे एक संघ की शाखा में जाता था आरा में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और कैसे वहाँ मेरी एक रिश्ता था, एक लगाव था। फिर मैं कैसे एक वामपंथी जो लेफ्ट लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, और कैसे फिर मेरी एक विचार चेतना विकसित हुई, वो मैंने कहा है। फिर मैंने ये भी कहा है कि जब मैं 2000 के आसपास में दलितों के बीच काम कर रहा था, फील्ड वर्क कर रहा था, क्योंकि देखिए हमारे पास समाज को समझने के दो माध्यम होते हैं। एक हमारा फील्ड वर्क, जिसमें हम सोशल रियलिटी खुद बोलती है और हमारी अवधारणाओं को तोड़ती है, वो वहां से हम चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है समाज में। और पकड़ने की जो लेंस थी वो थी एक लेफ्ट ओरिएंटेड लेंस, जिसमें कि ये वर्सेस, जो कॉमनल वर्सेस सेकुलर हिंदुत्व का जो एक जो कॉमनल जो फॉर्म था, वो डोमिनेंट डिस्कोर्स बन के हमारे भी पैरेलल, हमारे भी आईने को, चश्मों को शेप कर रहा था, क्योंकि हम वहीं से सच्चाई को देख रहे थे। तो परिणाम क्या हुआ कि जो सोशल रियलिटी का जो जो प्रसार था, वो पूरा हम कैप्चर ही नहीं कर पाए। बहुत बहुत एक छोटी कथा उसमें से निकल के आई, एक लीनियर लीनियर लेकिन उसका जो फायदा ये हुआ कि पहली बार सोशल साइंस के डिस्कोर्स में संघ का हिंदू दलित समूहों के बीच काम किए जाने की फिनोमेना को, आई थिंक सुरेश जो भी सोशल साइंस के स्कॉलर हैं, वो और लोग जो ऐसा पढ़ते हैं जानते होंगे, पहली बार मैंने ही उसको डॉक्यूमेंट किया। तो फील्ड वर्क है, आप उसकी अगर आइडियोलॉजिकल लैंग्वेजेस को के जो जो शब्द हैं उनको अगर आप हटाएं और सिर्फ उसके जो जो तथ्यों को देखें, तो उसमें हम सब बताते हैं कि कैसे जो आइकॉन्स हैं, कैसे हीरोज हैं, कैसे हिस्ट्रीज है, कैसे डिग्निटीज हैं, वो कैसे संघ उनके बीच खोज रहा है, और खोज के उसको रिशेप करके अपने डिस्कोर्सेस से जोड़ के और अपना विस्तार और प्रसार कर रहा है। उस समय मैं उसका जो इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट है उस पर ज्यादा जोर देता था। अभी राम माधव जी ने कहा, अभी भी वो मुझे अभी और वो भी इवॉल्व होना है। अभी भी जो कह रहे हैं ना, स्ट्रेटेजी शब्द जो है, कई बार क्या होता है, शब्दों का जो अर्थ है वो एक समय में प्रयोग से ही रूढ़ हो जाता है, तो उसके नए अर्थ भी खुलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी का जो रूढ़ अर्थ है वो शायद अब बदलने की जरूरत पड़ेगी। जो सोशियो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल डोमेन है उसमें उसको चेंज होना होगा। नहीं चेंज होगा तो वो शब्द ही मर जाएगा। यानी ये स्ट्रेटेजी शब्द इतना ज्यादा अभिशापित हो जाएगी कि खत्म हो जाएगी। तो इसको भी इवॉल्व करना है, यानी शब्द भी इवॉल्व करते हैं। तो मेरा कहना है कि तो वहां से फिर जब मेरे कहते हैं, जब मैंने कहा कि एक मैच्योरिटी आप कई बार आप इवॉल्व करते हैं, तो जब मुझे लगा कि मैं उस पूरे सोशल रियलिटी को ठीक से पकड़ नहीं पाया, और ये बार बार मुझे लग रहा था, और मैं लगातार फील्ड वर्क में देख रहा था कि वो लगातार लंबी चौड़ी होती जा रही है, वो जो प्रसार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसको हम उस फ्रेम से नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। तो हमारे फ्रेम में एक चेंज
होता विकसित हुआ, और फिर मैंने उससे ये किताब लिखी। और इस किताब को आपको शायद अच्छा लगेगा जान के कि कभी एक किसी ने रिव्यू किया है स्वराज में, उसने भी कहा है कि बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से इन्होंने किताब में लिखने की कोशिश करी है। और यही सेंट्रिस्ट जो गाली जो इस किताब को गाली भी दे रहे हैं, यानी जो हमारे कुछ वामपंथी साथी और कुछ पुराने दोस्त, वो भी उनमें से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है कि आप असहमत हैं, लेकिन इसमें एक बात को एक बहुत सावधान ऑब्जेक्टिव ढंग से कहने की कोशिश की गई है। तो अभी भी मैं उस साध नहीं पाया हूँ उस ऑब्जेक्टिव, वो साधना बहुत कठिन है, लेकिन मैं उस रास्ते पर हूँ। शायद अगली बार जब मैं आऊंगा तो और शायद बेहतर होकर के आऊंगा, और शायद मैच्योरिटी आपको हमारे नैरेटिव में दिखाई पड़ेगी। तो इट्स ऑल अ प्रोसेस टू इवॉल्व। तो अब मेरा लेंस वो नहीं रहा जो मैंने किताब में ही कही है, जो राम माधव जी ने कहा कि मैंने बहुत ही ईमानदारी से इस किताब में जो अपनी यात्रा है वो कही है, अपना इवोल्यूशन कही है, और कैसे एक नए लेंस की जरूरत है। और मैं अपने से ही नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सबको कह रहा हूँ उसमें। देखिए, ये किताब जितना हिंदुत्व पब्लिक के लिए है, उससे ज्यादा उन लोगों के लिए है जो हिंदुत्व से असहमत है, और उनसे कह रही है कि भाई आप इस तरह से सोचो। तो ये हम अपने से, एक मोनोलॉग नहीं है कि मैं कोई विचार बदल लूं या वो कर लूं, ये एक व्यापक डिबेट है जो मैं कर रहा हूँ उन लोगों से। ये बात जी। माननीय राम माधव जी, ये सवाल शायद आपके लिए है क्योंकि आप उस काम से जुड़े हुए हैं कि संघ को जनता में ज्यादा स्वीकृति पाने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, और संघ की सदस्यता के बारे में भी कुछ आप उन्हें बताएं। और साथ ही साथ जो अनरीच्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे अकादमिक जगत हो या समाज के विभिन्न हिस्से हैं जहां तक संघ की रीच अभी नहीं पहुंची है, तो वहां पे अपनी रीच बढ़ाने के लिए और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए संघ क्या काम कर रहा है। माननीय राम माधव जी, मैं पहले एक बात कहूं कि संघ का जो विरोधी क्षेत्र है, इसके बारे में काफी चर्चा अपने बीच में होती है, होना भी चाहिए। बट उसकी चर्चा करते समय एक चीज हम भूल जाते हैं कि जो संघ का समर्थक क्षेत्र है आज वो इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि ये चीज हम भूलकर कि ये मानकर चलते हैं कि संघ के विरोधी बड़े ताकतवर है। ताकत केवल अपना विरोध व्यक्त करने तक आज सीमित है, पर संघ की स्वीकृति का जो दायरा है बहुत बड़ा व्यापक है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से लेकर सुदूर वनवासी क्षेत्र में वहां रहने वाला एक वनवासी युवक तक संघ की पहुंच है। संघ के 40-45 हजार शाखाएं चलती है, 2-2.5 लाख सेवा प्रकल्प चलते हैं, 25,000 स्कूल चलते हैं। संघ के द्वारा, स्वयंसेवकों द्वारा चलने वाले BMS, ABVP, ये सारे अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। और राजनीतिक क्षेत्र का तो आज कहना ही नहीं है, सब दूर संघ के विचारों से प्रेरित राजनीतिक संगठन सब दूर है। तो इसलिए संघ का विरोध के बारे में सोचते समय एकदम डिफेंसिव होकर सोचने का कोई कारण नहीं है। विश्वास के साथ सोचिए कि भाई हम इतना बड़ा सेक्शन को संघ के दायरे में हमने लाया है, साइलेंटली काम करते हुए। इस किताब में एक बहुत अच्छी बात है, इसमें जो बातें बद्री जी ने संघ के संदर्भ में उजागर किया वो सामान्य लोगों के मुंह से किया। वहां इसमें कोई सरसंघचार्य जी का कोट नहीं है। हाँ, एक जगह है, पर वो केवल संदर्भ के लिए है। बट ज्यादातर कौन बोल रहा था? वहां के एक प्रचारक बोल रहा था, स्थानीय प्रचारक, वहां के कार्यकर्ता बोल रहा था। यानी वहां का लोअर लेवल पे रहकर संघ के विचारों को एक विश्वास के साथ कहने वाले लाखों लोग आज खड़े हैं। और किस बात का डर है संघ का? तो इसलिए जो विचारों का जो संघर्ष है, इसमें संघ ग्रास रूट लेवल पर काफी अच्छी तरह आगे बढ़ा है और भी बढ़ रहा है और भी बढ़ता रहेगा। हाँ, पर कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां कुछ आस्थान पुरोहित बैठे हुए हैं, वो कुछ इस विषय में मीडिया का क्षेत्र है, सोशल साइंसेस का क्षेत्र है, एकेडमी में हिस्ट्री का क्षेत्र है, वहां कुछ समस्याएं जरूर है। वहां के लिए निराकरण यही है कि उतना ही गहराई से और रिसर्च आना चाहिए। रिसर्च का उत्तर रिसर्च होना चाहिए, पब्लिकेशन का उत्तर पब्लिकेशन होना चाहिए।
हम क्या है, पब्लिकेशन का उत्तर हम गाली देना चाहते हैं, उसको एंटी नेशनल बोलना चाहते हैं। हो सकता है मैं किसी का नेशनल एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट देना नहीं देना, इसमें मेरा व्यक्तिगत राय है कि हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी को एंटी नेशनल डिक्लेयर करो, क्योंकि जो कल का एंटी नेशनल होगा आज नेशनल हो सकता है, आज जो नेशनलिस्ट है वो कल एंटी नेशनल भी हो सकता है। व्यक्ति समाज के परिवेश में बदलते रहता है, पर मूल मुद्दा यह है कि विरोध का सामना हम जो एकेडमिक क्षेत्र में आज मुख्य रूप से है, मीडिया क्षेत्र में मुख्य रूप से है, उसको एकेडमिक और मीडिया के ढंग से ही लड़ना चाहिए, उसका और कोई तरीका नहीं है। और संघ का जो अनरीच्ड पीपल्स का जो मैं एक बार वेटिकन गया था, तो वेटिकन में वेटिकन इज आल्सो ए गवर्नमेंट, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। तो वहां डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, तो एक मिनिस्ट्री है उसका नाम है अनरीच्ड पीपल्स मिनिस्ट्री। तो मेरा जो मीटिंग था उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से अरेंज किया गया, क्योंकि मैं अनरीच्ड पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव था उनके लिए, क्योंकि मैं अभी भी हिंदू हूं, इसलिए मैं अनरीच्ड पीपल हूं वेटिकन के लिए। पर संघ की परिभाषा में ऐसा कोई नहीं है। आज संघ समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में गया है, सभी डायमेंशन समाज वर्गों में संघ पहुंचा है। हाँ, और बढ़ना चाहिए ये लग सकता है, उसके लिए सब लगे हैं, तब प्रयासों से और संघ बढ़ेगा। अगेन मैं कह रहा हूं, संघ संगठन है, इस रूप से संघ की तरफ देखना बंद करो। संघ एक विचार है, इस रूप से देखते जाओ तो आपको लगेगा कि आज बद्रीनारायण जी भी तो संघ के उस विचार से सहमत है, चार और चीजों से सहमत नहीं होंगे, बट एक मूल विचार से सहमत होंगे। तो उस उदारता के साथ सोचते जाएंगे तो संघ का विचार और व्यापक रूप से सो कॉल्ड अनरीच्ड सेक्शंस पे भी पहुंचेगा। धन्यवाद। आप म्यूट है। डॉक्टर मनोज पटेरिया जी का सवाल है कि पड़ोस में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वो भी सेकुलर हो गया। भारत को कब का भविष्य आप कैसे विचार करते हैं? आरएसएस का उसमें क्या योगदान होगा? देखिए, पहली बात तो मैं नेपाल को अच्छी तरह जानता हूँ। नेपाल की जो राष्ट्रपति है हर साल इंडिया आती है, इंडिया आकर जरूर पूरी जाती है, जगन्नाथ दर्शन करने जाती है, और जब भी भारत आती है तो एम्बेसी में पूछती है कि कोई ऐसा कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज करने की संभावना है क्या। तो इसलिए संविधान से कोई देश सेकुलर घोषित कर दिया गया, इसलिए वो देश अब हिंदू नहीं रहा है, ऐसा मत सोचिए। हम भी संविधान से सेकुलर है, हम तो संविधान से सोशलिस्ट है, हम है क्या सोशलिस्ट। इसलिए संवैधानिक परिभाषा एक परिभाषा होती है, कभी कभी राजनीतिक कारणों से वो इधर उधर बदलता है, बट वहां समाज के अंदर हिंदुत्व की भावना, हिंदू विचारों का एक प्रबल है। हाँ, उस समाज में एक सेक्शन है, जैसा हर समाज में होता है, हमारे देश में भी है, यूएस में भी है, सब दूर होता है, जो एंटी रिलीजन होता है, वो एंटी हिंदू होते हैं। जहां वहां यूएस में वो एंटी क्रिश्चियन होता है, जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो एंटी क्रिश्चियन होते हैं। तो इसलिए एक लिबरल सेक्शन सब जगह होता है। नेपाल में वामपंथियों का गुट है, वो थोड़ा बहुत रिलीजन को मानने वाले नहीं है, पर मैं जानता हूं उनमें भी कई लोग, नेपाल छोड़िए हिंदुस्तान में भी बहुत अधिक संख्या में वामपंथी रिलीजन हिंदू तो ये सब अच्छा मानते हैं। और मैं तो एक छोटा उदाहरण देके इस उत्तर का प्रश्न को उत्तर समाप्त करता हूं। मैं तो एक बहुत बड़ा मार्क्सिस्ट नेता से मिला था, बहुत बड़े नेता थे वो, और मेरे को एकदम सम्मान से स्वागत किया, अच्छा किया, और बताने लगे कि देखिए मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, मैं तो रिलीजन को मानता नहीं हूँ, पर मेरी पत्नी तो हर वर्ष 9 दिन नव दुर्गा पूजा करती है, धूमधाम से करते हैं, तो हमारा जो ऑफिशियल उनका रेजिस्टेंस है, इसे हम दुर्गा पूजा का सब करते हैं। हाँ ठीक है, मैं कम्युनिस्ट हूँ। तो इसलिए ये सेकुलरिज्म वगैरह के चक्कर में ज्यादा चिंता मत करिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र था क्योंकि वहां समाज हिंदुत्व हिंदू सामाजिक गतिविधि में शामिल था, आज भी है, भविष्य में भी ऐसा रहे, ऐसी अपेक्षा हम सबकी है। जी, दो सवाल है। एक तो दलित शब्द को लेके है, एक चिंता व्यक्त की गई, जो कि जो दलित पूरा दलित पैंथर मूवमेंट में निकला, जो कि पूरा अपने आप में कहा जाए कि एक एंटी हिंदू कोनोटेशंस के साथ आया था। उसका वो आज क्योंकि एकेडमिक्स में जो भी शब्द है हरिजन या एससी और या जो भी शब्द थे उनकी जगह वो स्थान ले चुका है। तो इस पे आपकी समझ कैसे बनती है बद्री सर?
और दूसरा उसी से महिलाओं से जुड़ा जो 2 सवाल है उसमें माननीय राम माधव जी भी जवाब दे तो अच्छा रहेगा कि जो महिलाओं की स्थिति है संघ में, क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर अनुराधा जी हैं, वो कह रही हैं कि संघ की समझ जो है वो थोड़ी प्रोग्रेसिव कम दिखाई पड़ती है उन्हें। तो संघ की में पार्टिसिपेशन पे जो बहुत लगातार सवाल उठते रहते हैं, संघ की शाखाओं में महिला या फिर दुर्गा वाणी का रोल या फिर राष्ट्रीय वो सेविका समिति जो है, तो इस पे महिलाओं की स्थिति पे, संघ में महिलाओं की स्थिति, और दूसरा दलित। तो पहले बद्री सर दलित पे और महिला पे भी अगर कुछ बोलना चाहें, फिर महिला पे माननीय राम माधव। देखिए, दलित शब्द हमारी एकेडमिक्स का बहुत लोकप्रिय शब्द है, लेकिन जनता के बीच अगर आप गाँव में जाएं तो कोई भी दलित शब्द नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के गाँव में तो दलित शब्द जानता ही नहीं। लेकिन एकेडमिक्स में हम लोगों के पास कोई और शब्द नहीं है, तो हम लोग हमेशा दलित शब्द इस्तेमाल करते जाते हैं। और दलित शब्द के अब धीरे धीरे रिडंडेंट होने लगा है। एक सिर्फ अम्बेडकराइट, मेन स्ट्रीम अम्बेडकराइट जो स्कॉलरशिप है वो उसको लेकर के पकड़े हुए है, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी सीमाओं से सहमत हैं कि दलित शब्द जो है ये अपनी सीमाएं हैं, कैसे उससे निकले उसके लिए कोई एक शब्द ढूंढे। वंचित शब्द है, उपेक्षित शब्द है, एससी वगैरह तो है ही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन शब्द को लेकर के कांशीराम और मायावती ने मोबिलाइजेशन किया, लेकिन बहुजन शब्द के बाद भी वो भी बहुजन शब्द भी बहुत लोकप्रिय शब्द नहीं हो पाया लोगों के बीच। अभी भी गाँव में यहाँ जातियों से लोग जानते हैं और जातियों से लोग अपने को डिफाइन करते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं इसको अभी एक हमने कहीं के लिए पीस लिखा है कि पोस्ट बहुजन ट्रूथ, यानी बहुजन के बाद, मूवमेंट के बाद एक नई सच्चाई पैदा हुई उत्तर प्रदेश में, जिसमें दलित जातियां अब अपनी जाति को एसर्ट कर रही हैं। और उसके लिए तमाम सोशल साइट्स पे आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। पासी संघ, फलाना ढमाका, बहुत सारी जातियों के एसर्शन पैदा हो गए हैं। यानी बहुजन शब्द में जिनको अभी एक बार जोड़ने की कोशिश की थी मायावती और कांशीराम ने, वो फिर से एक तरह से ध्वस्त सा हो रहा है या टूट सा रहा है। तो वहां पर फिर एक जाति एसर्शन शुरू हो गई है। ये एक नई सच्चाई, और इसका असर भी आपको इस चुनाव में शायद दिखाई पड़े। तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो एक बड़ा चर्निंग है इस शब्द को लेकर के। कई जगह तो लोग कोर्ट में चले गए कि भाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कई जगह सरकारी उसमें तो रोक ही दिया है, मध्य प्रदेश के उसमें। उत्तर पंजाब में तो वहाँ के जो कहते हैं कि जो हमें चमार कहिए, ज्यादा हम खुश हैं इससे, क्योंकि द ग्रेट चमार का जो पूरा नोशन है। बट दलित शब्द मत कहिए हमको, दलित इज इन वन वे ह्यूमिलिएशन फॉर अस। तो इस तरह के नोशंस आ रहे हैं, बट अभी हम लोगों के पास कोई एक ऐसा और शब्द, राजनीति में भी दलित शब्द का इस्तेमाल कम से कम हुआ है। कांशीराम तो करते ही नहीं थे, मायावती ने भी शायद 2-4 बार किया होगा, और भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी के लोग भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वंचित शब्द आता है या उस तरह के शब्द आते हैं। तो राजनीति में भी ये शब्द नहीं, ये एकेडमिक्स का सबसे प्रिय शब्द है, और ये वो भी वेस्टर्न एकेडमिक्स का बहुत असर है हमारे सब के ऊपर। तो आसानी होती है इसमें समझाने में और समझने में, तो लोग इसमें करते हैं। बट वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू इवॉल्व अ न्यू वर्ड फॉर डिपिक्टिंग दिस कम्युनिटीज, और वो एक लंबी वो ये लड़ाई का हिस्सा है। देखते हैं कब तक हम लोग पहुंच पाते हैं। जी भाई साहब, आप एक सवाल विनी, मनोज और दर्शनी प्रिय जी का भी ले लेते हैं। महिलाओं का तो सवाल आपके लिए है ही कि ये संघ के बारे में अगर हमें कुछ पढ़ना हो, जानना हो तो बहुत कठिन होता है, और डेटा एक्सेस करना हो, डॉक्टर दर्शनी प्रिया का सवाल है कि हमें कुछ उनके बारे में कोई डेटा एक्सेस करना हो या कुछ जानना हो तो बड़ी कठिनाई होती है। तो जो आपने कहा कि उसको समझना और कठिन हो जाता है। और विनी मनोज जी का भी यही सवाल है कि अगर हमें इस तरह कुछ समझना हो संघ के बारे में तो कहाँ से हम लोग वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं? हाँ, पहली बात तो एक बात मैं थोड़ा दलित शब्द के संदर्भ में कहूंगा। जैसा बद्री जी ने कहा एकदम सही है। केवल एकेडमिक क्षेत्र में वो भी, क्योंकि गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। देश के 100 से अधिक जो वंचित समाज के जातियां थी उनको एक साथ लाकर उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। इस हरिजन शब्द का प्रचलन को रोकने के उद्देश्य से उस समय वो दलित शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया गया है। वो न दलित समाज में उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, जैसा बद्री जी ने कहा,
दलित समाज में हर जाति अपना जाति की ही पहचान चाहता है, कोई ओवरआर्चिंग दलित आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं है। और राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुजन आइडेंटिटी ही ज्यादा चलने लगा है। पर दलित एक एकेडमिक आइडेंटिटी रहा है, वो एक विशेष उसका एकेडमिक कारण है, मेरे ख्याल से बदलेगा, मैं उस बात से बदली जी सहमत हूँ। जहां तक महिलाओं का प्रश्न, मैं वो प्रश्न पढ़ भी रहा था, संघ कोई ट्रेडिशनल आउटलुक लेकर चलता है महिलाओं के विषय में, ये गलत है, ऐसा मुझे साउंड हुआ। आई स्टैंड करेक्टेड इफ माय अंडरस्टैंडिंग वाज रॉन्ग अबाउट दैट क्वेश्चन, बट माय पॉइंट इज ट्रेडिशनल व्यू अबाउट विमेन इन इंडिया वाज वेरी प्रोग्रेसिव। जिसको ट्रेडिशनल और बैकवर्ड ऐसे हम जोड़ देते हैं ना, वो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे ट्रेडिशनल व्यू ही बहुत प्रोग्रेसिव रहा है। यहाँ तो भगवान को भी हमने अर्धनारीश्वर माना है, निराकार है तो निराकार है, साकार है तो अर्धनारीश्वर है। वहां से लेकर आप द्रौपदी को पढ़िए, सीता को पढ़िए, ओरिजिनल वाल्मीकि का रामायण पढ़िए। सीता जिस प्रकार की बातें राम से करती है, उसमें इस प्रकार का एक विलक्षण व्यक्तित्व सीता का प्रस्तुत होता है। ये ट्रेडिशनल हिंदू व्यू ऑफ विमेन है। हाँ, इस ट्रेडिशनल व्यू में डिस्टॉर्शंस जरूर आए हैं। डिस्टॉर्शंस कुछ हमारे समाज के अंदर के कारणों से आया है, कुछ बाहर के कारणों से भी आए हैं। वो डिस्टॉर्शन से बाहर निकलना है। पर संघ जब व्यू करता है तो उसी व्यू को लेता है जो सनातन कालीन व्यू है, जहां वेदों में एक जो वेद ऋषि जो महिला थी, जिसने यहां तक लिख डाला कि मैं हूं जो इस समाज को संगठित रखने वाला। तो महिला का जो बहुत उच्च सम्मान का स्थान एक ट्रेडिशनल व्यू हिंदू समाज का रहा है, वह व्यू को संघ मानता है। हाँ, संघ का ये जो वर्किंग सिस्टम है, उसमें पुरुषों की शाखा अलग है, महिलाओं की शाखा अलग है। इतना जरूर अंतर है। उसके कुछ व्यावहारिक कारण है और कोई कारण नहीं है। वैसे तो वो केवल इंडिया में है, दुनिया के तमाम देशों में शाखा में सब साथ में आते हैं, बच्चे भी आते हैं, पूरा फैमिली शाखा में आता है। वहां प्रैक्टिकली दैट इज इजी टू डू। इंडिया में थोड़ा प्रैक्टिकली मुश्किल है। आप कह सकते हो कि आज शहरों में संभव है, पर आज भी गांव में संभव नहीं। तो कुछ व्यावहारिक कारणों से शाखा का कार्य अलग अलग है। अन्यथा संघ महिलाओं के प्रति जो दृष्टि रखता है, वो ट्रेडिशनल यानी सनातन जरूर हो सकता है, पर वो रिट्रोग्रेड नहीं है, वो बहुत प्रोग्रेसिव है। संघ चाहता है कि सब क्षेत्रों में महिला आगे बढ़े। संघ की जो सेविका समिति एक महिलाओं के लिए एक अलग विंग है ना, एक विंग नहीं, एक अलग उसका आंदोलन, एक संगठनात्मक रूप चलता है। उसमें तो महिला जो साथ आते, वो तो छुरी उसके साथ एक्सेस करते हैं, लाठी के साथ एक्सेस करते हैं। वहां तो आजकल कराटे जूडो का भी प्रयोग होता है, सब प्रकार का प्रशिक्षण उसमें मिलता है। कहाँ उनको रिट्रोग्रेड मानसिकता से रखा जाता है? नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो पारिवारिक जो व्यवस्था इस समाज का आधार है, उसके ऊपर संघ का आग्रह जरूर रहता है। बट पारिवारिक का अर्थ है नहीं कि केवल महिला ही उसका पूरा जिम्मेदारी है। उसका अर्थ है कि महिला, पुरुष और उस परिवार में बुजुर्ग, युवक सब मिलकर वो परिवार बनता है। हमारी जो सनातन कल्पना है, उसके आधार पर पारिवारिक व्यवस्था पर संघ का जरूर आग्रह रहता है कि वो एक इस समाज का मूल आधार, संस्कार देने का आधार रहा है। अन्यथा महिला सब दृष्टि से आगे बढ़े, सब क्षेत्रों में आगे बढ़े, और एकदम आधुनिकतम व्यवस्थाओं में भी महिलाओं का आज जो आगे बढ़ने का जो आज व्यवस्था है, उसमें वो आगे बढ़े, यह कल्पना संघ पूरा रखता है। पहले हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हिंदुइज्म अबाउट विमेन वाज रिट्रोग्रेड, ये हटना चाहिए। रिट्रोग्रेड व्यू आया मध्यकाल में, वो जाना चाहिए। हमारे यहाँ महिला को पुरुष के, है ना, ये बराबरी की बात नहीं है।
जैसा पुरुष है, महिला का भी पूरा स्वतंत्र अधिकार, स्वतंत्र अस्तित्व है महिला का, महिला के नाते। यही सनातन हिंदुत्व है। तो इसलिए उस सनातन हिंदुत्व का जो विचार है उसको संघ लेकर चलता है। संघ को समझने का जो प्रश्न है, कहाँ एक्सेस करते हैं, एक्चुअल डेटा वगैरह चाहिए तो संघ का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे कुछ जानकारियां, डाटा वाटा मिल जाता है। बट संघ, जैसे मैंने कहा, संघ कोई उस प्रकार का एक फ्रेमवर्क में फिट होने वाला संगठन नहीं है। संघ को कैसे समझना है, तो संघ के अनेक, जैसा अभी स्वदेशी कर रहे हैं एक गतिविधि, एकेडमिक्स फॉर नेशन, ये भी एक प्रकार संघ की गतिविधि है। इसके ऊपर कोई आरएसएस का स्टैम्प नहीं रहेगा। बट यहाँ के जो पढ़े लिखे प्राचार्य है, प्रोफेसर है, एकेडमिक्स है, उनके अंदर एक तो संघ के विचारों का ही सभी समझ हो, पर देश के बारे में भी सही सोचने का अवसर मिले, इतना ही संघ है। उससे ज्यादा संघ को समझने के लिए कुछ है ही नहीं, समझना है क्या है और कुछ समझने के लिए है ही नहीं। संघ इस देश के अच्छे सोचने वाले लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, उससे ज्यादा संघ कुछ नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा संघ को समझ लेंगे ये कोई बहुत ज्यादा संभव नहीं है। हाँ, फिर हिंदुत्व को समझो, हिंदुइज्म को समझो, महापुरुषों को समझो, वही संघ है। धन्यवाद। अंतिम दो सवाल राम माधव जी, आपके लिए दो सवाल, बद्री जी के लिए एक सवाल। अभय प्रताप जी का सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, और कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म को आप का जो पूरा नैरेटिव है उसको आपने उस पे आपके क्या कमेंट्स है, उसको क्या आप अलग देखते हैं या एक जैसा देखते हैं? अगर अलग देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ये सवाल आप दोनों के लिए है। और ज्ञान रंजन पंडा जी का सवाल है जो मनी राम माधव जी के लिए, कि विदेश नीति पे संघ की क्या समझ रहती है, कैसे काम करता है, और खासकर कि पाकिस्तान या पड़ोसी देशों के साथ और सामान्य रूप से सभी देशों के साथ। तो पहले बद्री सर कर दे जवाब हिंदू और हिंदुत्व का, फिर हम लोग राम माधव जी के कमेंट्स के साथ कंक्लूड करेंगे। मुझे लगता है सुदेश जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और मेरे मन में ये प्रश्न खुद भी लगातार चलता रहा जब मैं ये किताब भी कर रहा था और राम माधव जी को सुन रहा था। मेरा खुद भी यही, उनकी तरफ से मेरा भी ये प्रश्न राम माधव जी से ही है, और वो हम लोगों को ये जरूर बताएंगे, क्योंकि हम खुद भी समझना चाहते हैं कि है क्या। हम लोग तो एक शब्द के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसके पूरी जो कहते हैं ना, जो जो एपिस्टेमोलॉजी उस शब्द का, उसका जो भाषिक अर्थ है, वो सब हम लोग अभी मतलब मैं तो नहीं अभी बहुत जानता हूँ। हिंदू के बारे में भी जितना सुना है, जितना जिया है, उतनी ही जानता हूँ, और हिंदुत्व के बारे में भी जितना पढ़ा है, सुना है, उतना ही जानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर फिर आप कहेंगे आपने किताब कैसे लिखी, तो किताब प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन है, सोशल प्रोसेस का। उसमें वो एक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स नहीं है। इसलिए जैसा राम माधव जी ने कहा भी उस किताब पर बात करते हुए, तो शायद वो उत्तर हमें भी अभी ढूंढना है, और मैं भी ये प्रश्न आपके तरफ से उनको ही समर्पित करता हूं कि वो हम लोगों को इस पर ज्ञान दें। इतना जरूर है कि हिंदुत्व यह शब्द संघ ने अपनी तरफ से प्रयोग नहीं किया। पहली बात, डॉक्टर हेडगेवार हिंदू समाज शब्द का प्रयोग ज्यादा किए थे। परम पूजनीय गुरु जी अपने साहित्य में, अपने वक्तव्यों में हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग किए थे। हिंदुत्व शब्द सावरकर का क्रिएशन था। सावरकर हिंदुइज्म को एक इज्म के रूप में देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके दृष्टि से हिंदू एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, एक पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने हिंदुत्व इस शब्द का प्रयोग किया था। बट 80s के बाद यह शब्द संघ के विचारों के साथ भी जोड़ा गया है। हमने भी उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जिस कॉन्टेक्स्ट में सावरकर ने प्रयोग किया था। इज्म के स्थान पर नेस के रूप में इसको देखना चाहिए, यानी एक समाज के कैरेक्टर के रूप में देखना चाहिए, नॉट एज एन आइडियोलॉजी। जब ये समाज का कैरेक्टर है, यू कैन कॉल इट एज हिंदू नेस और यू कैन कॉल इट एज हिंदू डम। हिंदू नेस, हिंदू डम, नॉट हिंदुइज्म। हाँ, ये सावरकर का एक बहुत ही गहरा एकेडमिक दृष्टि से सोचा गया एक डायमेंशन था। पर क्या हिंदुइज्म खराब शब्द है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो
डॉक्टर राधाकृष्णन जो सबसे ज्यादा हिंदू फिलॉसफी पर जिनकी व्याख्या होती है, उन्होंने तो लगातार हिंदुइज्म शब्द का ही प्रयोग किया। गांधी जी तो अपने पूरे लेखन में हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग किया। हम सब एक ही बात को कह रहे हैं, पर जिनका अलग अलग एक परिवेश रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो शब्द कह रहे थे, उसके लिए अलग अलग कुछ शब्दों का प्रयोग हमने जरूर किया। जैसा हमने हिंदू राष्ट्र कहा, गुरुजी का पूरा लेखन में हिंदू राष्ट्र शब्द कई बार आता, पर हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बहुत विवाद है। तो सावरकर जब हिंदुत्व का किताब लिखते थे, उसमें उन्होंने प्रारंभ में ही ये विषय का चर्चा किया, क्या शब्द में कुछ महत्व है क्या? एक गुलाब को आप गुलाब नहीं कहेंगे तो वो क्या, वो उसका जो सुगंध खत्म हो जाता है? आप उसको दूसरा नाम बोलेंगे, रोज कहेंगे, तो क्या उसका सुगंध खत्म होता है क्या? नहीं होता है। पर गुलाब का जो पहचान है उसका सुगंध से है। इसी प्रकार हिंदुत्व, हिंदुइज्म, हिंदूनेस, हिंदूडम, आगे जाकर भारत, इंडिया, इन सभी का जब सुगंध एक होता है, यानी इसका कंटेंट एक होता है, तो शब्द से हमको कोई परहेज नहीं है। हमने ना हिंदुत्व से कोई परहेज रखा है, ना हिंदू राष्ट्र को हमने छोड़ा है। तो इसलिए हिंदुत्व एक शब्द प्रचलन में आया, उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। बहुत एकेडमिक वर्क होकर इसको हिंदुइज्म से अलग करने का या हिंदू धर्म से अलग करने का बहुत प्रचार हुआ है, ये बेकार प्रयास है। जहां तक संघ का सोच है, इनमें कोई अंतर नहीं है, इन शब्दों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इन सभी का कंटेंट एक ही है। अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर, एक मिनट के लिए मैं एक संदर्भ आपके सामने रखता हूं। इफ somebody is propagating divisive idea or divisive thoughts in the name of Hindutva, that's not Hindutva. Because Hindutva cannot be divisive. Just as Hinduism cannot be divisive, Hinduism is inclusive, Hindutva is also inclusive. इसलिए भागवत जी ने उस दिन दिल्ली के भाषण में ये कहा कि भाई हिंदुत्व मीन्स इंडियननेस एंड इंक्लूजन, ये हिंदुत्व है। शब्द चल पड़ा, पर उस शब्द के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे कहा, हमने इन्वेंट नहीं किया, शब्द चल पड़ा है तो आपत्ति नहीं है। देखिए, आज भी अपने आप को हिंदू नहीं मानने वाले, अपने आप को सनातनी मानने वाले बहुत लोग है कि नहीं? आप आर्य समाजी से पूछिए, वो हिंदू शब्द को मानेगा नहीं। इसलिए शब्द अलग अलग ढंग से लोग निर्माण करते हैं, कंटेंट, सार एक होना चाहिए। वो सार जो मैंने कहा वो है संघ का सार। इट इज इंक्लूसिव, इट इज वननेस, इट इज कल्चरल सिविलाइजेशनल, इट इज नॉट पॉलिटिकल। तो उस अर्थ में उस हिंदुत्व के शब्द को हमें स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे विदेश नीति वाला सवाल छूट गया, अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट में मैं मानता हूं कि वो संघ का काम तो नहीं है, जो संघ के स्वयंसेवक आज उस दायरे में है वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, तो बहुत ही अच्छी चर्चा रही है, और किसी भी अकादमिक कार्यक्रम की सफलता उसके सवालों से और कमेंट से हम देख सकते हैं। अभी भी सवाल आना जारी है। तो कार्यक्रम के अंत में जिनकी अनुमति से ये कार्यक्रम हो रहा था, ऐसे प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी जी से मैं अध्यक्षीय रिमार्क्स के लिए आग्रह करूंगा। श्री कट्टीमनी जी जी, सबको प्रणाम। प्रोफेसर बद्री नारायण जी की किताब के बहाने श्री राम माधव जी ने अब तक बातें की। एक बार उनकी किताब पर विशाखापट्टनम में बात हो रही थी, तो मैंने इन्हें लाइटर वे कहा था, प्रोफेसर राम माधव जी। बिल्कुल राम माधव जी, आज भी आप प्रोफेसर के लहजे में ही आपने बात की। तो थोड़ा बहुत ही गहराई से रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी, आज देश में बहुत गहराई से, बहुत बड़ी चर्चा में लोग इस किताब पर बात कर रहे हैं। और गहराई से आज प्रश्न उभरे और बातें हुई। फिर बद्री नारायण जी ने और गहराई से, विस्तार से इस पर बातें की।
मैं 2-3 अपने अनुभव संघ से जुड़े बातों को मैं यहाँ बताना चाहूंगा। आज हमारे आंध्र प्रदेश में सीतमपेट एक मंडल है, उसमें पालकोंडा नामक एक ट्राइबल विलेज में संघ ने सुबह एक प्रोग्राम का आयोजन किया था सेवा भारती के माध्यम से। तो 10 लाख रुपए वर्थ खान पान के सामानों को जनजातीय लोगों को, आदिवासी लोगों को, जंगलवासियों का वितरण किया गया। वहां ये बात लगातार चल रही थी कि जनजातीय लोगों को क्या शिक्षा, कैसी शिक्षा देनी चाहिए और उनकी मातृभाषा को रखना जरूरी है या अन्य मतलब ये हमारे राज्य में आंध्र प्रदेश में तेलुगु में क्या उनको रखना चाहिए इस तरह की, क्योंकि यहाँ 2 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, चटापू एंड सवरा, दोनों की संख्या बड़ी संख्या है। तब राम माधव जी अब तक जो बातें उन्होंने राम माधव जी ने की और बद्री जी ने जो बातें की, उससे ये उभर कर आती है कि हम बातों से या लिखने से माने या न माने, हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बातें, जैसे किसी लेफ्टिस्ट लीडर का उदाहरण माननीय राम माधव जी ने दी, तो इस तरह का विरोधाभास हमारे जीवन में अक्सर कई बार होता है। लेकिन मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले स्वीकार नहीं करते। परिवार वाले स्वीकार करते हैं तो यंगर जनरेशन वाले उसको स्वीकार करते हैं। ये विरोधाभास अक्सर सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में हम देखते हैं। बद्री नारायण जी की ये जो पुस्तक में, क्योंकि ये 20 वर्षों से दलित एंड अनटचेबल्स को लेकर लगातार लिख रहे हैं, ट्राइब्स को लेकर लगातार लिख रहे हैं, लेबर्स को लेकर लगातार लिख रहे हैं। उन्होंने इस तरह का एक नया विषय ले लिया जिसके कारण से एक आउटसाइडर कैसे इनसाइडर बन जाते हैं। और माधव जी ने और स्वदेश जी ने आदि सब ने कहा कि इनसाइडर्स को तात्विक रूप से या आउटसाइडर को तात्विक रूप से कैसे वोकल होना पड़ रहा है, वोकल होना जरूरी है। मैं अपने जीवन में खुद मैंने देखा संघ कैसे कैसे अपने विचारधारा में इजाफा लेते आई। वाजपेयी जी के समय में कैसे अंबेडकर जी ने स्थान पाया संघ के कार्यक्रमों में, और कैसे आदिवासियों के समय, आदिवासियों के संदर्भ में बिरसा मुंडा जी कैसे प्रमुख स्थान में आ गए। मैं कहता हूं ये स्ट्रेटजी वटर्जी हम जैसे लोगों को ये नहीं लगता। हमको लगता है कि विचारधारा में ये विकास है। जैसे जैसे हम विस्तार से समझना, पढ़ना, लोगों से मिलना शुरू करते हैं। अमरकंटक में 6 बरस मैंने देखा कि जनजाति समाज में यदि लोग उनके पास जाते कोई, तो वो केवल इलेक्शन के लिए जाते, वोट मांगने जाते या उनके धर्म परिवर्तन के लिए जाते थे। लेकिन संघ ने, कार्यकर्ताओं ने, छोटे से छोटे कार्यकर्ता उनके पास गए, उनकी सेवा की, क्योंकि वहाँ औषधियों का, लोगों का पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना, औषधियों को पहुंचाना, उनको ले जाना, उनकी शुश्रूषा कराना, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी एक किताब कन्नड़ में अभी छपी, मेरे 6 वर्ष के अनुभव अमरकंटक के वाइस चांसलर के रूप में मैंने जो किया है, 25 अध्यायों में वो कन्नड़ में 200 पेज में वो छपी। उसमें एक अध्याय मैंने वो संघ के बारे में लिखा है, और जिसका अनुवाद, उस पुस्तक का अनुवाद मैं अभी हिंदी में मैंने पूरा किया, अभी वो छप रही है, आप तक पहुंच जाएगी। मतलब
इससे पहले अमरकंटक आने के पहले संघ से मैं कभी जुड़ा हुआ नहीं था या किसी विचारधारा से हम जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अमरकंटक आने के बाद 2014 से मैं इतना प्रभावित हुआ कि नहीं, वाकई यहाँ सेवा मनोभावना है। ये कथनी और करनी में इन लोगों में अंतर नहीं है या बहुत कम अंतर है, लेकिन निचले स्तर के जो सेवा कार्यकर्ता, जो सेवक हैं, फुल टाइमर्स हैं, वो लगातार खाते हैं, नहीं खाते हैं, उनको खाना मिलता है, नहीं मिलता है। कई बार वो सुबह से शाम तक काम करके वो यूनिवर्सिटी आते थे, उनका मैं सेवा करता था। ये पूरा समझने की इस प्रोसेस में मैं एक आउटसाइडर था, बद्री जी एक आउटसाइडर थी, लेकिन हम कैसे इनसाइडर बन गए, ये प्रोसेस बद्री जी is the first person who has taken it very seriously and written in a very revolutionary way. मैं इस संदर्भ में बद्री जी को बधाई देता हूं और आदरणीय राम माधव जी को अपनी विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखने के लिए, उनकी बातों से हमारे कई लोग, हम जैसे कई लोगों के भ्रम दूर हो गए। मैं स्वदेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत सुंदर आयोजन करके हमको हमारी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश, सफल कोशिश आपने की। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to invite Dr. Vandana Mishra from JNU for formal vote of thanks. Dr. Vandana Mishra. नमस्ते। चंदन जी, आप बोलिए वंदना जी। हेलो। हेलो। Outsiders and few people are insiders of Sangh. I think, sir, that these are very small words to say about people. For Sangh, nobody is an outsider and nobody is an insider. As Ram Madhav ji has said, that it is an evolving idea which takes all of us together. And through last 96 years, this journey is still continuing. And through the book, Republic of Hindutva, How the Sangh is Reshaping Indian Democracy, Professor Badri Narayan has added a new leaf, a new chapter, a new road in making Rashtriya Swayamsevak Sangh a subject of academic interest. And also he has tried to look at Sangh from a researcher's perspective. He has tried to look at social reality and how social reality talks to an individual and explains the presence and the importance of Sangh, its seva karyas from last 96 years. So thank you, Professor Badri Narayan, for bringing this new perspective, a new dimension to the understanding of Rashtriya Swayamsevak Sangh. And you very rightly said that it's very difficult to say everything about Rashtriya Swayamsevak Sangh. It's very difficult to say, especially from a researcher's perspective. And as Ram Madhav ji has said, that to understand Rashtriya Swayamsevak Sangh, you have to live the organization. You have to be a part in the Baithaks. You have to be a part of Shiksha Varg. You have to be a part of that organization to understand it. And even if you do that, you might not be able to say that I know the entire organization. And he very rightly said that, very rightly tried to explain that, there are many faces and all faces have shadows. And whosoever is looking at a shadow is trying to explain the face. They might bring out one part of that expression or one part of that face, but they will not be able to see the whole character, whole structure, whole being of that organization. So thank you, Ram Madhav ji. You are not only you not only have added an academic input into this discussion, but you yourself being a Pracharak and a member of National Executive Committee of Rashtriya Swayamsevak Sangh was the very right person to have a discussion, to initiate a discussion on the book. Thank you, Professor Kattimani ji, to chair this discussion. This program has been joined by a few vice chancellors, many professors from national and international universities, associate professors, and research scholars who have keen interest not only in understanding Indian democracy, but as we have seen from the questions, that whenever there is a slightest of a tangent where the discussion touches RSS, the entire questioning line is on what RSS actually is. So I would like to say again, thank you all for looking at Sangh as an enigma, and few part of it should continue to remain as an enigma so that we can still do a research, still try to understand what Rashtriya Swayamsevak Sangh is. So thank you all.
Thank you, Ram Madhav ji. Thank you, Bajranarayan ji. Thank you, Pratibha ji. Thank you, Sudesh ji. Namaste. Thank you.